आपको उड़ीसा में क्या अपॉर्चुनिटी देखा जो आप $4 बिलियन इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो गए? सिटीज पे बेट लेना जो आगे जाके बैंगलोर बनी उस स्टोरी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एसोटेक। आज एक डेवलपर आपने क्या स्कोप देखा भुवनेश्वर में? Question is who is making that? Bhubaneswar also just beat every metro city in 10-year housing returns. ଏଠି ତ ରେଟ୍ ବହୁତ ଅଧିକ ହେଲାଣି। ଗୋଟେ ଘର କିଣିଲେ ଆଜିକାଲି 1,000,000 ଟଙ୍କା, ତାଠୁ ଟିକେ ଯଦି ଦୂରରେ କିଣିବୁ ପେରିଫେରିଆଲଠୁ ଟିକେ ଦୂରରେ କିଣିବୁ 50 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। जैसे रियल एस्टेट एक कैपिटल इंटेंसिव मार्केट है, बट इस तरह लेबर इंटेंसिव मार्केट भी है। यहाँ पे उड़ीसा के लेबर यहाँ पे काम करते हैं या बाहर से? स्किल्ड लेबर बाहर से आती है एंड अनस्किल्ड लेबर यहीं यूटिलाइज होता है। दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम आज आप फेस कर रहे हैं। अगले 5 साल में आप रियल एस्टेट को कहाँ देख रहे हैं उड़ीसा के? रियल एस्टेट हैज 8 ईयर लाइफ साइकिल। एवरी 8 ईयर रियल एस्टेट में रिसेशन आता है। अब जो रिसेशन आने वाला है इट कैन गो एज बिग एज 2008 क्राइसिस। On September 15, 2008, Lehman Brothers, the fourth largest investment bank in the world, declared bankruptcy. It was the largest bankruptcy in history. यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल कैपिटल इतना क्यों नहीं आ रहा है जितना आना चाहिए? वो देखते हैं कि अगर कल को भुवनेश्वर मार्केट डूब गया तो ये मुझसे कोई खरीदेगा ये प्रोजेक्ट। अभी गवर्नमेंट भी एक लंच किया है BCPPR, $500 बिलियन इन्वेस्ट करेगा बाय 2036। इतने कम टाइम में इतना सारा खर्चा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। कुछ प्लान कर रहे हैं उड़ीसा के लिए अफोर्डेबल हाउस के लिए? एंड विल स्टार्ट फ्रॉम 11 lakhs। यहाँ पे भुवनेश्वर में क्यों फोकस नहीं करते 1 करोड़ के अंदर एक फ्लैट बनाए? एवरीवन ट्राइज टू हिट 3 cities। पूरी भुवनेश्वर कटा। एसोटेक का एक कॉन्सेप्ट है सिटी इन ए सिटी, वो एग्जैक्टली क्या है? Nobody has ever thought of this. It is the responsibility of developers to make sure ये कहते हैं ना ये ट्रेडिशन खत्म ना हो। East has largely been ignored in India. A big segment of Odiyas are getting ignored, and that is a disservice to the state. This is very counterintuitive to my own project. नमस्ते आदित्य जी, बेस्ट इन उड़ीसा को आपका स्वागत है। हम ऑफ कैमरा बहुत बात किए। फर्स्ट तो मैं बिंग एन ओडिया मेरा पहला क्वेश्चन ये होगा, आपको उड़ीसा में क्या अपॉर्चुनिटी देखा जो आप $4 बिलियन इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो गए? Yeah, it's a loaded question. It wasn't. मैं बोलूँगा it didn't came to me, in just one single day. It was I would say a journey of 2-3 years of vision development. And I would say I came to Bhubaneswar first time when I was, I think it was in 2018, 2018 October if I'm correct. And I had no idea उस समय. I never came to Odisha. I think I came before, maybe long ago, but when I was a kid. But I had no particular memory of it. So when I first came to Odisha, it was like a blank canvas to me. But because I had already worked in Ranchi, and I had worked in Metro City, Delhi, NCR as well. So I had further, I had, I would say, significant experience and exposure to how real estate markets work, both in a metro city and in a very small city like Ranchi. So I saw that when I came to Bhubaneswar, I saw that the developers here at that time, I would say almost a decade ago, 8 years ago, at that time, they weren't particularly aggressive. They were lacking a kind of vision at that time, and they were just making products like it's like a government company, like a PSO. कि आज ये बनाना है, कल ये बनाना है, 6 बजे उठ के चले गए. There was no passion, there was no energy, and but I was coming from NCR. वहाँ पे a lot of young people worked in real estate, so there was a lot of energy, a lot of culture जो यहाँ पे lacking था. I would say ये मैं supply side से बोलूँगा, from the demand side, from the customer segment side. Before launching any project, I started talking to the real end users, and I'm not talking about men. I'm talking about women, and I'm talking about married women who had kids and who stayed at home most of the time. So I went to a lot of societies and I talked to these married women. एंड ऐसे ही हम लोग कमरे में बैठे होते थे चाय के साथ. सिंपल जेनरिक क्वेश्चन मैं उनसे पूछता था कि आपने जब ये घर खरीदा तो आपका क्या क्या देख के लिया आपने, और क्या आपको लगता है कि छूट गया, क्या रिग्रेट्स थे आपके. तो वेरी सिंपल गैप्स विच आई सॉ. जैसे उन्होंने बोला, एक बहुत ही बढ़िया चीज़ बोली उन्होंने, बोला कि मेरे बच्चे के रूम में मैं अगर बेड लगा देती हूँ तो उसके स्टडी टेबल लगाने की जगह नहीं है, उसको डाइनिंग टेबल बैठ के पढ़ना पड़ता है. अब डाइनिंग टेबल में शोर शराबा हो रहा है, वो खाना बनाते हैं कोई तो इतनी आवाज़ आती है, स्मेल आती है, तो बच्चा का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा टूटता रहता है. कोई टीवी देख रहा है तो कोई कर नहीं सकता.
everyone has to then adjust their schedule according to the kid. So ये छोटी छोटी चीज़ें हैं. आप देखो पूरा एक सोशल आर्किटेक्चर बिगड़ जाता है घर का. एंड मैं आपको बहुत फ़नी चीज़ें बताता हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया जब मैं यहाँ पे आके फ्लैट में रहा. मैं आई नॉट नेम मैं कौन से फ्लैट में था, कौन से प्रोजेक्ट में. मैं इनफैक्ट मैं अभी वहीं रहता हूँ. बट जिस अपार्टमेंट में खुद मूव इन किया यहाँ पे आने के बाद, छोटी चीज़ें जैसे बेड के साइड में सॉकेट होता है टू चार्ज योर फ़ोन, वो भी नहीं था. वॉशिंग मशीन का सॉकेट उन्होंने, आप सोचो, एंड उसका पाइप जो वाटर पाइप बोलते हैं डालने के लिए, वो उन्होंने मास्टर बेडरूम की बालकनी में दिया हुआ है. मास्टर बेडरूम की बालकनी में, कि मास्टर बेडरूम बालकनी यू आर पुटिंग अ वॉशिंग मशीन एंड यू नॉट पुटिंग लाइक अ चेयर एंड टेबल टू सिट. सो इवन दो they had given a storage, a servant room, right? But simple things like that एक पूरा घर का नॉर्म को बिगड़ जाता है. रूम साइज बहुत छोटे देते थे. इनफैक्ट एक यहाँ पे नॉर्म था जो बहुत डेवलपर्स अभी तक फॉलो कर रहे हैं इन 2026 एज वेल, विच वॉज कि 3 चीज़ें डेवलपर जैसे विच इज़ डाइनिंग, ड्राइंग एंड फैमिली लॉन्च, इन 3 में से 2 ही चीज़ें देते. एंड ड्राइंग रूम का कॉन्सेप्ट अपार्टमेंट में यहाँ पे लोगों ने हटा ही दिया था, डेवलपर्स ने. तो देयर वाज नॉट इवन एन ऑप्शन कि ठीक है थोड़ा प्राइस ज़्यादा है दूसरे यूनिट का, बट देयर इज ऑल दीज 3 डिफरेंट स्पेसेस आर अवेलेबल इन द अपार्टमेंट. तो मोस्ट अपार्टमेंट डेवलपर्स क्या करते थे, डाइनिंग एरिया एंड फैमिली लॉन्च, वही 2 चीज़ें देखते थे, राइट. अब ड्राइंग रूम नहीं होने का इशू क्या होता था, जब गेस्ट आ रहे हैं तो गेस्ट को फैमिली लॉन्च में बैठाओ आप. अब कोई फैमिली लॉन्च में, अब मेरा कोई सपोज इफ आई एम द हस्बैंड, मेरा कोई दोस्त आ रहा है, मेरा बेटा टीवी नहीं देख सकता फैमिली लॉन्च में बैठ के, मेरी वाइफ नहीं बैठ सकती वहाँ पे, मेरे कोई पेरेंट्स रहते हैं वो नहीं बैठ सकते वहाँ पे, कोई बैठ उसका प्राइवेसी नहीं है, रूम में बैठना पड़ेगा जाके. सो ये सब इश्यूज़ हैं जो एक्चुअली घर में आते हैं. एज सिंपल एज टॉयलेट के अगर मैं आपको बताऊँ, कोई 3 BHK में 2 टॉयलेट्स दे रहा है डेवलपर. तो एंड एक 3 BHK में यूजली हस्बैंड वाइफ, उनका बच्चा एंड पेरेंट्स है. चलो हस्बैंड वाइफ के मास्टर बेडरूम में टॉयलेट है, बट बाकी 2 बेडरूम के लिए टॉयलेट इज अ कॉमन टॉयलेट. तो यूजली क्या इशू होता था कि अगर एक बच्चा ब्रश भी कर रहा है, द एंटायर टॉयलेट इज ऑक्यूपाइड नाउ. तो हमने यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस किया, इनफैक्ट इसी सोसाइटी में हमने इंट्रोड्यूस किया है दैट हमने मल्टी यूटिलिटी टॉयलेट बनाया कि ब्रश करने का एंड नहाने का और WC का, तीनों का अलग अलग हमने सेपरेट कर दिया है बहुत ही यूनिक तरीके से. तो उसमें क्या है, वो स्पेस भी कम यूज़ करता है, एंड अगर किसी को ब्रश करना है तो शावर का एरिया फ्री है, क्योंकि शावर लेना है तो WC का एरिया फ्री है. सो ये बहुत ही इंट्यूटिव था. एंड यूजली 10 मिनट 15 मिनट लेट तो ऐसे ही हो जाता है कि बाथरूम ऑक्यूपाइड होता है. तो छोटी छोटी, अब बाथरूम ऑक्यूपाइड लेट है, ऑफिस पहुंचता है, फिर लेट पहुंचा, बॉस से गाली खाओ, फिर पूरा दिन खराब. एक छोटी सी चीज़ चेंजेस योर एंटायर डे, एंड इट ऑल स्टार्ट्स एट होम एंड एंड्स एट होम. मैंने समझा है. इनफैक्ट आई वुड से जो ये फिलॉसफी है इस तरीके की, ये हमारे एस्ट्रोटेक के DNA में बहुत टाइम से है. वी वर द फर्स्ट पीपल इन गाजियाबाद, वी वर द फर्स्ट पीपल टू इंट्रोड्यूस लेफ्ट हैंडेड किचन्स फॉर फीमेल्स. कि लॉट ऑफ फीमेल्स वो लेफ्ट हैंडेड, बट सब कुछ राइट हैंडेड तरीके से बना था. इनफैक्ट जो दरवाजे का सिटकली होती है ना, वो बहुत अब 6 फीट डोर होते थे, और इतनी छोटी सी सिटकली होती थी एकदम टॉप पे. अब इंडिया में मोस्ट वुमेन आर नॉट टॉल वुमेन, उनकी एवरेज हाइट इज 5'6", 5'5", उससे कम ही है इनफैक्ट 5'4", 5'5" के बीच में. तो मोस्ट वुमेन का करना होता है दरवाज़ा लॉक करने के लिए पूरा टोस पे आके लॉक करना पड़ता है. तो हमने क्या इंट्रोड्यूस किया वहाँ पे, हमने लॉन्ग सिटकली सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा कि आपको टोस पे खड़े होकर लॉक करने की जरूरत नहीं. इनफैक्ट कोई ओल्ड पर्सन लॉक कर रहा है तो उसको तो गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा, राइट. सिमिलरली हमने वर्क फ्रॉम होम के लिए जो स्पेस है वो हमने 10 ईयर्स अगो पहले हमने नोएडा में इंट्रोड्यूस कर लिया था, नोएडा के प्रोजेक्ट में, कि वी रियलाइज दैट नोमैड लिविंग विल स्टार्ट, वर्क फ्रॉम होम विल स्टार्ट. तो हमने वहीं पे स्पेस बनाने लगे थे जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम का कल्चर हो बने. इनफैक्ट वी वर द फर्स्ट पीपल, फर्स्ट डेवलपर्स एज वेल टू इंट्रोड्यूस स्काई स्क्रेपर्स इन नोएडा. हम नोएडा में हमने 32 फ्लोर्स का फर्स्ट स्काई स्क्रेपर लेके आए थे कॉल्ड सेलेस्टार्स. एंड ओडिशा में वी वर द फर्स्ट पीपल टू इंट्रोड्यूस माइवन टेक्नोलॉजी. एंड फॉर अ प्रोजेक्ट लाइक आर्स जिसमें वी हैड ऑलमोस्ट
1,700 flats in the society, Asotech Gold Avenue 1. To complete that using conventional construction was impossible. This large scale development, it's almost 3 million square feet development, 30 lakh square feet development. अब 30 लाख स्क्वायर फीट में आपको बताऊं तो मेरे हाफ कंपटीशन ने भी इतना नहीं बनाया अपने लाइफ टाइम में, अब जो मैं एक प्रोजेक्ट में बना रहा हूँ. सो द स्केल इज सो डिफरेंट एंड द टाइप ऑफ problems that I deal with, our company deals with, my team deals with, is so different than the type of problems that other people are, other departments, other my competition dealing with. And because we're dealing with a very different set of problems, our solutions and innovations are also very different. I think this is what we saw when we first came to Odisha. And the type of impact that we created last 8 years, I think everyone has seen here. Yeah. आदित्य जी, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ आपको. आपने ये देखा कि घर में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या इश्यूज है. आप पैशनेट है, मुझे लग रहा है आपका पैशन है घर बनाने का. मगर आज ए डेवलपर आपने क्या स्कोप देखा भुवनेश्वर में? लाइक आई सेड, देखिए मोदी जी ने ना बहुत पहले बोला था, मे बी इन 2024 इलेक्शंस के टाइम पे, दैट बाय 2050 60 to 65% of India will be urbanized. And by 2030, almost 35% of India will be urbanized. Most of this urbanization will be happening in tier 2 and tier 3 cities. Cities like Chandigarh, Varanasi, Pune, Vadodara, Bhubaneswar, Ranchi, ये सारे cities का अब टाइम है. एंड इनफैक्ट मैंने अपनी खुद की थ्योरी जोड़ी है इसकी. मेरी थ्योरी क्या है इसमें, दैट इन 1950s अमेरिका देयर वाज दिस कैंपेन दैट द गवर्नमेंट, अमेरिकन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, कॉल्ड द ग्रेट अमेरिकन ड्रीम. वो कैंपेन इसलिए था दैट जॉब्स रेडीली अवेलेबल एंड हाउसेज वर अफोर्डेबल एंड एक सिंगल पेरेंट के इनकम से लोग घर खरीद सकते थे. I believe that India is currently under that, in that stage. अब 1950s अमेरिका में आप देखोगे तो उस समय जहाँ इंडिया आज है उस समय यूएस था. वहाँ 7 to 8 मेट्रो सिटीज़ होते थे वहाँ पे. सिटीज़ लाइक बॉस्टन, एटलांटा, सैन फ्रांसिस्को, they weren't on the map economically speaking, but today they hold $1 billion industries, right? कैसे बनाया उन्होंने? It wasn't magical, it wasn't magic, it was strategy, it was, you know, taking bets on these cities. And I believe that आज इंडिया में 7 to 8 मेट्रो सिटीज़ हैं. फॉर इंडिया टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री, एंड वो मोदी जी का स्टैटिस्टिक कंप्लीट करने के लिए इंडिया के पास 20 मेट्रो सिटी लेवल सिटीज़ होनी चाहिए जो ऑपरेट कर सके इन टैंडम टुगेदर. दैट विल व्हाट रिप्रेजेंट अ डेवलप्ड कंट्री इन माय आइज. जब 20 बैंगलोर जैसे शहर, गुड़गांव जैसे शहर इंडिया में हो, राइट? क्वेश्चन इज हु इज मेकिंग दैट, वो कौन कर रहा है? तो देयर इज अनदर गैप यहाँ पर रियल एस्टेट में. अगर मैं बोलूँ, इफ़ आई आस्क यू साउथ में कौन डेवलपर बड़े बड़े, यू कैन नेम, बात कर दोगे प्रेस्टीज एंड ऑल. आप बोलोगे वेस्ट में लोधा है जो कर रहे हैं काम, यू नो, नेशनल इंटरनेशनल स्केल पे ले जा रहे हैं उस सिटी को. नॉर्थ में DLF ये सब कर रहे हैं, इंटरनेशनल नेशनल स्केल पे जा रहे हैं. बट इफ़ आई आस्क यू ईस्ट में कौन ले जा रहा है? सो ईस्ट हैज़ लार्जली बीन इग्नोर्ड इन इंडिया. That's why there's so much potential here, because it is underutilized. So Asotech यहाँ पे, this is where Asotech comes in. The story of taking India from a developed country to a developing country, and उसमें cities पे bet लेना, जो आगे जाके बैंगलोर बनेगी, उस story में contribute कर रहा है Asotech in East India. This is our vision for India, and it's a trickle down vision. जो national vision है उसको हम कहते हैं ना अपने नैरेटिव में फिट कर रहे हैं इन आवर कंपनी. दैट इज व्हाट वी आर डूइंग. आदित्य जी, आपने एक सही बात बोला कि ईस्टर्न इंडिया जो है वो थोड़ा इग्नोर हो रहा है. कहीं भी हम जाएंगे तो वही पूछते हैं उड़ीसा कहाँ पे है. मगर आप दिल्ली से आके उड़ीसा में इन्वेस्ट कर रहे हो. सिर्फ उड़ीसा में नहीं, ईस्टर्न इंडिया में आप इन्वेस्ट कर रहे हो. आप एक बेट भी लगाए हैं, वन स्टेट रियल इस्टेट, सिंगल स्टेट रियल इस्टेट. ज़्यादातर डेवलपर्स को हम देखते हैं वो डाइवर्सिफाइड, जियोग्राफिकली डाइवर्सिफाइड एरिया में करते हैं, मगर आपने कंसंट्रेट किया. क्यों ऐसा, आप क्यों सोचे कि हम कंसंट्रेट करके करेंगे? सो आई टेल यू, वी आर मैक्रो सेंस में वी आर डाइवर्सिफाइड, एज लाइक वी आर इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट स्टेट्स. बट इफ यू टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर सिटी इन दैट स्टेट,
we are not in, we don't have 10 different projects in 10 different locations. Our business model is township model. So after 2018 we decided that हम single project 2 tower 3 tower project हम नहीं करेंगे. And there was a whole strategy and philosophy behind it. The strategy is India needs a unified development vision. What I mean unified development vision isn't just कि government, developer and consumer coordinate कर रहे हैं तीनों, but what I mean is geographically unified. अभी आप what do you see? I'll tell you, give you a very good example. DLF Camellias 100 crore की property गुड़गांव में, बट उसके जस्ट सामने फ्लडिंग होती है हर मानसून सीजन में. Why? प्लान नहीं है. It's not, the vision is not unified. And मुंबई में ड्रेन्स हैं जो 5 year प्लान से बिल्ड हुए हैं, 10 year प्लान से बिल्ड हुए हैं, पर तब भी मानसून आती तो चलो अब फ्लड अब बेटर हो गया काफ़ी लास्ट 5 years में, बट लास्ट 20 years से आप देखोगे देयर वाज लॉट ऑफ फ्लडिंग्स इन एवरी मानसून सीजन. वो क्यों है? बिकॉज प्लान नहीं है. भुवनेश्वर आज ये प्रॉब्लम्स फेस नहीं कर रहा है. भुवनेश्वर इज अ स्मार्ट सिटी. इट्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्मार्ट सिटी इन द वर्ल्ड राइट नाउ. सॉरी वर्ल्ड है शायद से राइट नाउ, या इफ आई एम करेक्ट. एंड Bhubaneswar also just beat every metro city in 10-year housing returns, 148%. And उसका भी बहुत ही interesting story अगर आप सुनोगे तो 148% is the exact return that we have given, by the way, to our investors in the first project that we launched. So people brought our products at 50 lakhs and आज का price is 1.5, 1.8 CR. And that's the exact return that we have given. And because we did that with almost 200, 300 investors, larger than any other project than any other developer can take on. So our metric will usually, influence the larger statistic of Bhubaneswar returns. क्योंकि हम उसमें सबसे ज़्यादा पाई होल्ड करते हैं. अगर टोटल रिटर्न लेट्स से 10,000 लोगों का देख रहे हैं अक्रॉस ओडिशा, उसमें से अगर 400 500 हमने एक एंटिटी नहीं किया तो यूजुअली हम इन्फ्लुएंस कर जाएंगे उसको. So that's why we feel कि I particularly feel that वो हाउसिंग रिटर्न में एसोटेक का बहुत बड़ा हाथ है उसको टॉप लेवल पहुँचाने के लिए. क्योंकि 10 year रिटर्न अगर आप देखोगे तो उड़ीसा में डिमांड इतना ज़्यादा अभी बूम हुआ है लास्ट 5 साल से. एसोटेक 2018 से कर रहा है काम यहाँ पे इनफैक्ट आप देखोगे. सो बहुत लोग जो डेवलपर्स अभी लॉन्च भी किए हैं उनका डिलीवरी नहीं हुआ प्रोजेक्ट आप देखोगे तो आई डोंट थिंक उनका काउंट होगा फिर कहीं ना कहीं रिटर्न में. हमने 2020 में लॉन्च किया था तो इट्स नाउ 6 years. सो कहीं ना कहीं आई बिलीव दैट हाउसिंग रिटर्न में एसोटेक प्लेड अ वेरी ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन. एंड कमिंग बैक टू द मेन कॉन्वर्सेशन, लाइक आई सेड भुवनेश्वर की जो मैक्रो स्टेटिस्टिक्स हैं, whether it is housing return, whether in terms of infrastructure, even the vision of the municipal authority of Bhubaneswar, let's say, is, even if it's not par, but it's beyond a lot of metro cities municipal authorities visions. I had the privilege of working with a lot of commissioners of municipal authorities of Bhubaneswar, and I would say if Bhubaneswar is lucky in that matter, but each and every commissioner was a very dynamic person in their own regard. And सब अपना एक एजेंडा और विजन लेके आते थे उसको अचीव करने के लिए. And the type of response that we have seen here from the government institutions is very proactive. It's very encouraging as well to see. And I would say these were the major factors which I thought that हम लोगों को करना चाहिए, that one city, one project, one city, one township. And the secondary aspect was that keeping aside all these macro points, that अगर आप एक प्रोजेक्ट बनाते हो तो बाकी सब लैंड अराउंड का आपके प्रोजेक्ट के लैंड के अराउंड का वैल्यू बढ़ रहा है, राइट? बट उसको आप कैप्चर नहीं कर पाते हो एज ए डेवलपर. इन अ टाउनशिप मॉडल यू कैन कैप्चर दैट एज वेल. एंड एक प्रॉपर इकोसिस्टम क्रिएट होता है अगर आप एक टाउनशिप में आप बना दो तो फ्रॉम नॉट जस्ट द रेजिडेंस बट ऑफिस, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइट, लैंडस्केपिंग सब कंट्रोल करते हो उस टाइप का वहाँ पे. So the type of experience that you can and the standard of living you can deliver in a township is 100x better the type of experience you can deliver in a single project. And I would say that is
a very good USP for us as a company. कि बिकॉज एन ओडिया बायर और अ बायर इन झारखंड जो देख रहा है, जो सोच रहा है घर खरीदने का आज, सो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट आपको एक चार दीवार के अंदर क्या मिल रहा है, राइट? इंडियन रियल एस्टेट इज़ नॉट अबाउट दैट नाउ एनी मोर. इट्स अबाउट इसके बाद क्या मिल रहा है, और फ्लैट के साथ साथ और क्या मिल रहा है आपको. एंड यू कैन प्ले अ लॉट ऑफ एमिनिटीज़ गेम कि आज 100 एमिनिटीज़ है, कल 200 एमिनिटीज़ है, बट द रियल पार्ट कम्स इन एक्सपीरियंस डेवलपमेंट. कि आप एक्सपीरियंस क्या डिलीवर कर रहे हो अल्टीमेटली. मैंने यहाँ पे अगर स्क्वॉश कोर्ट या फिर लेट्स से पिकल बॉल कोर्ट बना दिया, बट अगर मेरे रेजिडेंट्स खेलते ही नहीं है वो, तो क्या फ़ायदा, राइट? जैसे स्विमिंग पूल का आज बहुत, चलो उड़ीसा में तो स्विमिंग करते हैं कि गर्मी यहाँ पे बहुत करने लग गए हैं, बट इन अ लॉट ऑफ मेट्रो सिटीज़ स्विमिंग पूल इज़ अ मस्ट फॉर एनी मस्ट एमिनिटी फॉर एनी प्रोजेक्ट, बट हार्डली एनी वन यूज इट. इट्स जस्ट देयर एज अ सोशल स्टेटस एंड नथिंग एल्स. तो amenities is just, you know, it's just another, it has become like car. जितनी बेटर गाड़ी उतना बेटर सोशल स्टेटस, वैसा सब फिलोसफी हो गया amenities को लेके. सो या हमारा पर्टिकुलर फिलोसफी थी वन सिटी वन स्टेट को लेके यही था. और एक बात जानना चाहती हूँ कि जैसे रियल एस्टेट एक कैपिटल इंटेंसिव मार्केट है, बट इस तरह लेबर इंटेंसिव मार्केट भी है. यहाँ पे उड़ीसा के लेबर यहाँ पे काम करते हैं या बाहर से आप लेबर लाते हैं? Look, it's a mix of both. Skilled labor उड़ीसा में अभी नहीं है इतनी, उसके लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. इवन वी आर ट्रेनिंग अ लॉट ऑफ आवर ओन लेबर फोर्स कि वो जैसे माइवन का यूसेज है. अब माइवन इज़ अ कॉस्टली इक्विपमेंट. इफ़ इट्स हैंडल्ड बाय अनस्किल्ड लेबर देन आई विल फेस अ लॉट ऑफ डैमेज एंड द टाइप ऑफ क्वालिटी दैट विल बी एक्सपेक्टिंग वो निकल की नहीं आएगी प्रोडक्ट से. अनस्किल्ड लेबर विल हैंडल द इक्विपमेंट. दैट इज ट्रू इन एनी इंडस्ट्री, राइट? तो बिकॉज ऑफ दैट स्किल्ड लेबर बाहर से आती है एंड अनस्किल्ड लेबर यहीं यूटिलाइज हो जाता है. दैट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम आज यहाँ पे आप फेस कर रहे हो. क्योंकि यहाँ पे देयर इज, लाइक वी वर टॉकिंग बिफोर द पॉडकास्ट स्टार्टेड, दैट देयर इज़ नो रिसोर्स शेयरिंग, नॉलेज शेयरिंग और एनी प्लेटफॉर्म जहाँ पे लेबर को एक्चुअली स्किल बनाया जाए. अभी जो भी हो रहा है गवर्नमेंट साइड से हो रहा है, और गवर्नमेंट साइड कितना ही करेगी, सब कुछ हैंडल कर रहा है. प्राइवेट एस्पेक्ट से देयर इज़ नो पुश यहाँ पे. यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर का कोई रोल नहीं है? आप जैसे प्राइवेट प्लेयर बड़े लेवल पे बैठे हैं. बिल्कुल रोल है, बट प्राइवेट प्लेयर का रोल कंट्रीब्यूशन कैसे आता है, यूसेज बहुत कम है लेबर का. अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मैं हार्डली 500 600 हज़ार लेबर तक पहुँच रही है मेरी प्रोजेक्ट में. मैं उनको ट्रेनिंग दे दूंगा, बट लेबर मार्केट इज सो बिग, उससे कुछ नहीं होने वाला था, राइट? और वो हर डेवलपर अपने लेबर, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल इफ अनदर डेवलपर कोई नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है अपने कंस्ट्रक्शन में, तो उसको अपने लेबर को तो ट्रेन करना ही पड़ेगा उस टेक्नोलॉजी में. दैट इज़ अ मस्ट. तो वो तो कर ही रहे हैं. बट इफ़ यू टॉक अबाउट इन अ मोर लेट्स से मास लेवल, कि आर देयर एनी अकेडमीज, आर देयर एनी इंस्टीट्यूशन जो लेबर को ट्रेनिंग दे रही है, वो भी सिर्फ गवर्नमेंट एस्पेक्ट्स हो रहा है. प्राइवेट एस्पेक्ट नहीं हो रहा कि कोई इंसेंटिव नहीं है, कोई बिजनेस मॉडल नहीं बना इसको लेके. इनफैक्ट और वो इसलिए नहीं है बिकॉज पीपल, डेवलपर्स, अगर मैं पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, लेबर इंडस्ट्री बात करूँ, तो डेवलपर्स आर नॉट पुशिंग फॉर लेट्स से रिस्कियर प्रोजेक्ट्स, एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स जिसमें, या यूजिंग टेक्नोलॉजी जिसमें स्किल्ड लेबर का एक्चुअली यूसेज हो. जब आप पुराने मेथड से करोगे तो पुराना तरीका आजमाओगे, तो फिर क्या फ़ायदा स्किल करने का, किसी को उसका खर्चा बढ़ रहा है आपका. तो एनी राइट नाउ ओनली दोज प्राइवेट प्लेयर्स आर डूइंग अप स्किलिंग देयर लेबर जिनको एक्चुअली रिक्वायरमेंट है. इवन वी आर नो डिफरेंट, हम भी वही कर रहे हैं बिकॉज हमें अभी रिक्वायरमेंट है, एंड बिकॉज देयर इज़ नो डायरेक्ट बेनिफिट, तो इसलिए डायरेक्टली इस पर अभी इन्फोर्समेंट नहीं हो रहा है कहीं से. जो भी पुश है गवर्नमेंट साइड से ही है. और इसमें थोड़ा दिक्कत नहीं है कि आप लेबर बाहर से ला रहे हो, फिर यहाँ पे घर कर रहे हैं वो लेबर, फिर इसमें थोड़ा प्राइस पे थोड़ा फर्क नहीं पड़ रहा है? लेबर मार्केट इज़ अ वेरी आई वुड से सैचुरेटेड मार्केट. मतलब जो आज उड़िया कर सकता है वो सेम काम बंगाली भी कर सकता है काम. अनस्किल्ड मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ. सो ऐसा नहीं कि मैं बंगालीज को यहाँ पे बुला के ज़्यादा वेजेस दे रहा हूँ. अगर मेरे को दिख रहा है अगर मैं एक ओडिया वर्कर को मैं कम वेज में सेम काम करा सकता हूँ, तो वाई विल नॉट आई हायर जस्ट ओडिया वर्कर्स. मेरा तो प्रॉफिट और बढ़ जाएगा, राइट? बट द रीज़न आई हैव टू कॉल इन बंगाली एंड वर्कर्स फ्रॉम बिहार इज बिकॉज वही स्किल्ड लेबर चाहिए आपको, स्किल्ड लेबर है नहीं यहाँ पे. एंड इफ आई टेक अप द टाइम टू स्किल, तो फिर तो मेरा प्रोजेक्ट बन गया अभी. तो नाउ वी आर द लेबर दैट वी आर स्किलिंग, वी आर नॉट रिटेनिंग देम फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स.
तो ऐसे करके मेरा खुद का स्किल लेबर पूल तो बढ़ जाएगा। एंड अब इनको जब हमारा काम खत्म हो जाएगा, इनका सर्टिफिकेशन होगा स्किल्ड उस पर्टिकुलर स्किल का, तो वो जाके कहीं और भी काम कर सकते हैं और उनको बेटर वेजेस मिलेंगे वहाँ पे। तो वो तो उनके लाइफ लॉन्ग एक पर्क बन गया, राइट। बट ऑन अ मास लेवल करने के लिए तो इट हैज़ टू बी डन थ्रू अ बिजनेस मॉडल। इट कांट बी जस्ट चैरिटेबल, right? Because it is on a mass level. It has to be done through business model. It has to be business around it, right? जैसे एक हो कोई एकेडमी हो जिसमें वो ये ना भी अभी डिमांड ही नहीं है कि मैं क्यों स्किल करूं। अगर मेरे को मेरे काम ही नहीं है स्किल लेबर का। स्किल लेबर काम तब आएगा जब मैं एम्बिशियस प्रोजेक्ट बनाऊंगा, नई टेक्नोलॉजी लेके आऊंगा। अभी मेरे अलावा हार्डली 2-3 और डेवलपर कर रहे हैं अब माई वन में, right? मगर वहीं देखिए भुवनेश्वर तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है, जैसे आप बोल रहे बट थे। इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप होने का मतलब ये नहीं कि स्किल्ड लेबर उसमें यूज हो। काम पुराने तरीके से भी, इट्स नॉट अपग्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द फर्स्ट टाइम। ओडिशा इज, राइट। तो इसलिए तो जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो वी आर अ लिटिल बिट बिहाइंड, दैट्स द प्रॉब्लम। बट द स्पीड जिस लेवल से हम भुवनेश्वर डेवलप हो रहा है, ओडिशा डेवलप हो रहा है, इज वेरी गुड एंड इट्स मच बेटर देन अदर स्टेट्स। In fact, the problem was this only, that Odisha was the major, exporter of minerals. 25% steel I think Odisha से निकलता है. Major exporter of aluminium Odisha से है. Coal भी 20% I think Odisha से निकलता है, right? But इतना value create कर रहा है Odisha, lakhs of crores का commodities create हो रही है. But value capture नहीं कर पाता Odisha. Value capture नहीं कर पाता. I don't know if you know about this. जैसे अभी माइनिंग इंडस्ट्री को उड़ीसा गवर्नमेंट से 20,000 absurd अमाउंट का टैक्स किया था। दैट्स बिकॉज नई पॉलिसी नहीं बनी थी, एनफोर्स नहीं हुई, बनी थी तो एनफोर्स नहीं हुई, और अब जाके एनफोर्स हुई है उस इलेक्शन के टाइम में भी। तो अब नो वन इज रेडी टू पे, एवरीवन इज ट्राइंग टू लियाज़ों कि कैसे करके इसको बस टाल दें। बट दैट इज एक्चुअल, दैट इमेजिन वो टैक्स कलेक्ट हो जाता और एक्चुअली यूज़ होता, कितना बेनिफिट होता उन पर्टिकुलर एरियाज में जहाँ पे एक्चुअली माइनिंग हो रही है। वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट होता, स्कूल्स बनते, रोड्स बनती, लाइट बनते, मेडिकल फैसिलिटीज़ आती, बट ये सब नहीं हो पा रहा। तो ओडिशा इज़ वेरी गुड एट वैल्यू क्रिएशन, बट इट इज़ नॉट गुड एट वैल्यू कैप्चरिंग फॉर इटसेल्फ। उड़ीसा क्यों वैल्यू कैप्चर नहीं कर? गवर्नमेंट तो वही है जो अलग स्टेट में है। ये आपको इंडिपेंडेंस से जाना पड़ेगा। इंडिपेंडेंस पे आप देखोगे तो जब इंडिपेंडेंस हुआ तो हमारे लीडर्स ने उस टाइम के सारे स्टेट्स को असेस किया, देखा कि कौन स्टेट पावरफुल है किस एस्पेक्ट में। तो ईस्टर्न बेल्ट बाय द वे इंडिपेंडेंस के टाइम पे इट वाज वेरी पावरफुल, व्हाई? बिकॉज इट वाज मिनरल रिच, एंड स्टेट्स लाइक गुजरात, वहाँ पे मिनरल ही नहीं था कुछ ऐसा। बट आज देखोगे गुजरात इज डेवलप्ड और यहाँ डेवलपमेंट नहीं है। वो दैट वाज एक्चुअली डेलिबरेट एक्शन बाय द वे बाय द लीडर्स ऑफ दैट टाइम। वो डेलिबरेट इसलिए किया बिकॉज उनको डर था कि उड़ीसा, झारखंड, बिहार बेल्ट इतना मिनरल रिच है कि ये तो कुछ करे ना करे अमीर बन ही जाएंगे अपने आप, एंड गुजरात जैसे स्टेट्स कुछ नहीं है, इनको इन पे हाथ नहीं रखेंगे अच्छे से, इनको स्पून फीड नहीं करेंगे तो वो पिछड़ जाएंगे बहुत। तो दैट्स वाई लास्ट 70 ईयर्स से इन स्टेट्स को, जिन स्टेट में मिनरल रिच नहीं थे, उनको बहुत उनके लिए स्कीमें बिठाई, उनमें डेवलपमेंट लाया, नेशनल फोकस कराया उस पर, सेंट्रल गवर्नमेंट का सही फोकस कराया। एंड द होल हंच वॉज कि उड़ीसा एंड बिहार एंड झारखंड में ये इतना मिल रहा है, इतना मिनरल रिच है, ये तो इंडस्ट्री आएंगे एंड दे विल अर्न मनी। बट दैट डिडंट हैपन, इवन दो इंडस्ट्रीज आई, बट वैल्यू कैप्चर कहते हैं ना, टैक्स नहीं क्रिएट, वैल्यू कैप्चर टैक्स नहीं क्रिएट कर पाए, टैक्स नहीं जमा कर पाए ढंग से, वही प्रॉब्लम थी। इनफैक्ट एसोटेक मैं बोलूँगा at certain point in I think one couple of years ago we were the highest GST payers in real estate in Odisha, and हमें सर्टिफिकेट मिला है GST डिपार्टमेंट से। या तो टैक्स नहीं दोगे तो सरकार डेवलपमेंट नहीं करेगी, मेन तो प्रॉब्लम यही है ना। तो कहीं ना कहीं वैल्यू कैप्चर में ये चीज़ मिसिंग थी, एंड बहुत टाइम से उड़ीसा के बाहर के लोगों ने ये मिनरल वाला एस्पेक्ट कैप्चर किया हुआ था, माइनिंग इंडस्ट्री कैप्चर किया हुआ था। चलो अभी भी किया हुआ है थोड़ा बहुत तो, बट इफ इट्स समवन हु इज आउटसाइड द स्टेट को जो कंट्रोल कर रहा है एक पर्टिकुलर मेजर नेचुरल रिसोर्स, उनकी नेचुरली उनका एजेंडा भी उड़ीसा से लिंक नहीं होगा इतना। उनका एजेंडा होगा जहाँ पे वो रह रहे हैं उस तरफ से ज़्यादा लिंक हुआ, राइट।
सो आई वुड से ये एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जो ये इंडिपेंडेंस टाइम से निकल के आ रही थी. दैट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम. एंड अगेन उस टाइम पे 1950s के टाइम पे उड़ीसा वॉज वेरी लेफ्ट लीनिंग, इफ़ यू नो. कौन सा जगह था यहाँ पे, मलकनगिरी, मालकानगिरी, जो हाँ. माओइस्ट में सबसे ज़्यादा अटैक्स होते थे हाँ. उसमें. एंड चलो वो जो बीजेडी टाइम पे बीजेडी वालों ने अच्छे से सफा चट कर दिया उसको, बट या इट वाज वेरी लेफ्ट लीनिंग. एंड 1950s 1975 1980 टाइम पे इतने अटैक्स होते थे मत पूछो आप वहाँ पे. एंड जब लेफ्ट लीनिंग होती है ना कोई सोसाइटी, वो इसलिए होती है लेफ्ट लीनिंग बनती है सोसाइटी. ये सेम चीज़ फ्रांस, रशिया, हर जगह देखा है सबने, हम सबने स्कूल में पढ़ा है, राइट. क्योंकि मोनार्की या उससे वाले ब्रिटिश रूल वो इतना गंदा था, इतना I would say draconian tha in nature, that people had an allergic reaction to any structure of power, any hierarchy of power. They wanted everything to be level playing field. तभी मार्क्सिस्ट थ्योरीज एंड मार्क्सिस्ट एजेंडा ने हाईजैक कर लिया था पूरा उड़ीसा को. क्योंकि फॉर 200 years आपको समझना, द मेजॉरिटी ऑफ ओडिया पीपल वर नेटिव ट्राइबल्स, majority. And Jagannath ji क्या है? Jagannath ji is basically ट्राइबल के गॉड. it's a mixture of tribal culture and Hinduism. हाँ. उनको जब वो कोलैबोरेट हुआ हजारों साल पहले आज से, तब जगन्नाथ जी बने. हिंदुइज्म और ट्राइबल कल्चर, ट्राइबल डीटीज को हम कोलैबोरेट करके. I think, I don't know if I'm correct or not. Maybe I think Jagannath ji was actually an amalgamation of Christian ji and the local deity god of Odisha. And वो उनको कंबाइन किया तो जगन्नाथ जी निकल के आए थे. एंड लोग बोलते हैं दैट ओनली द वेस्ट एंड ने कैथोलिज्म, कैथोलिक चर्च एंड वैटिकन सिटी, उन्होंने इंटीग्रेट किया था रिलीजन एंड गवर्नमेंट को बहुत पहले से. बट इट वॉज एक्चुअली ओडिया किंग्स जिन्होंने डिसाइड किया कि उनका जो रूलरशिप है, इट इज़ एक्चुअली टू सर्व जगन्नाथ जी. ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी ने क्रिएट किया था जगन्नाथ टेम्पल, एंड दे डिड इट एंड दे डिक्लेयर्ड दैट दे आर सर्वेंट, दे आर नॉट रूलर्स, दे आर सर्वेंट्स. एंड इट इज़ अ रिलीजियस किंगडम, इट इज़ नॉट अ पॉलिटिकल किंगडम. कि उन तो ये करने के टाइम ये द होल, यस देयर वाज बिलीफ सब था, बट पॉलिटिकली आप देखे हुए it was a master stroke in solidifying that dynasty. And no other king had ever done that in history of India इस तरीके से. And yeah, I would say Odia history is very fascinating from independence of the, even if you go further back, it's very fascinating. माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आप उड़ीसा के बारे में बहुत रिसर्च किए, आप एक बहुत बढ़िया चीज़ बोली, मुझे इंटरेस्टिंग लगा. शायद हमें पता है गंगा डायनेस्टी ने जो छेरा पैरा एक होता है, क्योंकि जब हमने स्कूल में पढ़ा था तो हम रट्टा मार रहे थे, हमें बोरिंग लगा, हमने भूल गए. मैं आपके साथ बात करने के बाद मुझे ये पता चला कि हाँ ये एक गेम है कि हाँ हमारा डायनेस्टी को कोई बीट नहीं कर सकता. आप उड़ीसा के ऊपर इतने रिसर्च किए हैं, आप रियल इस्टेट के ऊपर में बहुत रिसर्च किए हैं, हम आपके हमारा बात कर रहे थे. अभी रियल इस्टेट बूम में है, बूमिंग में चल रहा है, सब घर खरीद रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं. अगले 5 साल में आप रियल इस्टेट को कहाँ देख रहे हैं उड़ीसा के? ये एक लोडेड क्वेश्चन है. आई थिंक थोड़ा डिस्कशन हम इससे पहले भी कर रहे थे बिफोर द पॉडकास्ट स्टार्टेड. मैं उस पर एक्सपैंड करता हूँ. और सो रियल इस्टेट हैज़ अ 8-year लाइफ साइकिल. एवरी 8 years रियल इस्टेट में रिसेशन आता है. इनफैक्ट अभी लास्ट 10 years से देखोगे तो 2 बार आ चुका है. 2016 में ट्रिपल ट्रॉमा आया था, विच वॉज GST एंड डिमोनेटाइजेशन, एंड देन फाइनली उसके बाद कोविड आ गया. एंड देन फिर कोविड का फेज़ 2 फेज़ 1 होते होते गया. 2022 में वापस वी रिकवर्ड. तो 2 रिसेशंस बड़े बड़े तो आ गए थे. अब जो रिसेशन आने वाला है, इट विल अब आई डोंट वांट टू क्रिएट पैनिक एंड स्टफ, बट it can go as big as 2008 crisis. इसमें 2-3 एस्पेक्ट है, and or it can be a normal recession as well, which can easily recoup in under 2-3 years. It can be both. Normal वाला तो it's very straightforward, but I'll tell you about my theory जो ज़्यादा हो सकता है बड़ा, 2008 crisis related. So the micro aspect of Bhubaneswar real estate particularly was
that after launching our flagship luxury project in Bhubaneswar, the first luxury project, a lot of developers thought that they can do it, and they can do it better than us and bigger than us. Or more power to them, obviously. सब सोच सकते हैं, but because they lacked experience, they didn't have the kind of talented manpower जो उसको execute करने के लिए चाहिए, and as well as the type of customers who were buying their product were also the creme de la creme of that society. So उनसे भी पंगा लेना कि आपने अपने agreement को contradict किया, which is usually common in real estate. Whether it is आपने delay in possession कर दिया, whether it is आपने घर छोटा बना दिया और जो बोला वो exactly लगा के नहीं दिया, refund time से नहीं दिया, whatever. तो all these issues agitate a customer, and if a customer is very powerful, then they can create a PR nightmare for that particular developer. I believe all these three micro aspects are currently being played together in Bhubaneswar real estate. Lack of experience in Bhubaneswar's developers who are trying to build these ambitious projects. And I'm not saying they shouldn't do that, but I'm saying that you should step it up slowly. Once you take big steps, your chances of falling also increases as compared to taking smaller steps. जो भी बना रहे हैं सस्टेनेबल बनना चाहिए. बिजनेस सस्टेनेबली ग्रो करना चाहिए, सिर्फ दूसरे इंसान को देख के नहीं होना चाहिए, अपने कैपेसिटी कैपेबिलिटी को देख के होना चाहिए. इवन वी कैन थिंक कि यार लेट्स क्रिएट अ DLF साइबर सिटी इन भुवनेश्वर, बट वी कांट डू दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल द सिटी डजंट डिमांड दैट, एंड हमारी कैपेबिलिटी भी नहीं है मैं टॉप 100 कंपनीज को, ग्लोबल कंपनीज को ले आऊँ भुवनेश्वर में, राइट? सो we have to come up with a product that can match our capability and also cater to the customer's demands. It has to be a balance between both. So most of the developers weren't following this philosophy. They saw that if Asotech can sell a 2 crore home in Bhubaneswar, then we can sell 4 crore home. And if they can sell 200 2 crore homes, then we can sell 600 4 crore homes. That was the philosophy guiding their strategy. Now, once you come into this rat race, this competition, there is no end. किसी एक ने लॉन्च करा 4 करोड़ 600 अपार्टमेंट, किसी ने लॉन्च कर दिया 5 करोड़ का प्रोडक्ट. आई एम श्योर यू ऑल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. आई डोंट वांट टू नेम एनीवन, बट you are following me, right? So once this happens, prices start increasing, affordability becomes lesser and lesser. And that's why last 2-3 years से affordability has gone down the floor. आज आपको सिर्फ 1.5 करोड़ के ऊपर के प्रॉपर्टी प्राइसेस मैक्सिमम दिखेंगे. And the question is, who is buying? The only people who are buying are bureaucrats, top businessmen, high salaried job usually जो tech के अंदर है. And like I said, they are the who's and who's of this society. अगर इनके साथ आपका contract breach होता है in any term, whether it's refund or delay in possession, they will create a PR nightmare for you. The macro aspect of the recession is obviously the global अभी war जो अभी top पे आ गया है crisis. Whether it is war in Iran, Ukraine war time से चल रहा है, Strait of Hormuz getting blocked, oil prices skyrocketing, Modi ji saying don't buy gold, don't go on foreign trips, do work from home, do carpooling and stuff. So that has created a mass negative sentiment in the general market overall. Not just real estate, but in general as well. इवन अभी एक वायरस आ गया था हंता वायरस करके, उससे भी पैनिक क्रिएट हो गया था. चलो आई होप उससे ज़्यादा ना हो, बट ऑल दीज मैक्रो एलिमेंट्स इज क्रिएटिंग अ वेरी ब्लीक शॉर्ट टर्म फ्यूचर राइट नाउ फॉर ग्लोबली. अब जब ग्लोबल शॉर्ट टर्म ब्लीक होता है तो इंडियन रियल एस्टेट मार्केट में FDI बहुत कम आते हैं. द फ्लो ऑफ FDI रिड्यूसेस. Even though अभी FDI काफ़ी पीक पे हिट कर गया था, but all of these global issues, all these foreign institutions are now pulling out of money, and record money they have pulled out now. Even if our government is stable, the overall Indian economy is stable, but because of global issues, people are now pulling out of money, and they are now betting on safe countries like US कि वहाँ पे short returns. So these macro elements and micro elements, if you combine them both, then you will understand कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के नाम बताऊँ तो प्रोजेक्ट डिले हुआ क्योंकि कॉस्ट बढ़ रहे हैं ग्लोबल अफेयर्स की वजह से. कॉस्ट बढ़ेंगे, प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, कस्टमर एजिटेटेड होंगे, 4 जगह फ़ोन घुमाएंगे, 4 जगह केस करेंगे. डेवलपर ऐसे ही पैसे नहीं दे पा रहा है अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को, सप्लायर्स को,
डिले होगा, कस्टमर ट्रस्ट कम हुआ, कस्टमर अपना ड्यू कंप्लीट नहीं करेंगे, वो बोलेंगे आप काम शुरू करो तो पैसा दूंगा, देन बिकम्स अ विजुअल साइकिल कि पैसा आएगा तो काम शुरू होगा, काम शुरू होगा तो ही पैसा आएगा. एंड दैट इज हाउ. मैं एक छोटी चीज़ बताऊँ ना, वन डेवलपर आई थिंक 2-3 years back I heard someone was launching 42 store building conventional construction. अब 42 store building कोई कन्वेंशनली कर नहीं सकता 3 साल में, 4 साल के अंदर. इट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल. आप सुपरमैन को भी आके काम ईंटें लगाओगे तो नहीं होगा. अब ऐसे समझो, इट कैन ओनली बी डन थ्रू टेक्नोलॉजी अपग्रेड इन कंस्ट्रक्शन. इट कैन नॉट बी डन थ्रू कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी, नॉर्मल जो ब्रिक वर्क से करते हैं. क्योंकि 3 महीने में 1 महीने में 1 फ्लोर लगता है. तो कैसे आप स्ट्रक्चर कंप्लीट करके फिनिशिंग भी कर लोगे, आप उसका MEP भी कर दोगे, पाइपिंग वाइपिंग सब कर दोगे. इट्स फिजिकली इम्पॉसिबल. एंड अ लॉट ऑफ दीज डेवलपर्स हैव नाउ बॉट प्रोजेक्ट जो लंबे स्काई स्क्रेपर्स, क्योंकि दे हैव हायर्ड आर्किटेक्ट्स जो NCR में काम करते हैं. एंड वही आर्किटेक्ट्स ने NCR में लंबे स्काई स्क्रेपर बनाए, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप यहाँ भी बना लो. बट यू नो यहाँ पे लोगों के पास 100 crores की फंडिंग नहीं है डेवलपर्स के पास, जो NCR डेवलपर्स के पास है. यहाँ पे वो उस तरीके का दे डोंट हैव दैट आई वुड से शील्ड जो उनके प्राइस मटेरियल कॉस्ट अप्रिसिएशन इस सब बचा सके. तो ये सब फैक्टर्स कंबाइन करोगे तो अभी भुवनेश्वर मार्केट के लिए इट इज़ अ ब्लीक आउटलुक आई वुड से. एंड दैट इज़ वाई वी आर एज एट एसोटेक we are trying to make sure that whatever project that we are delivered उसको हम अच्छे से maintain करें first, ताकि the quality of project लोगों को दिखे even during recession. दूसरा new project launches हम अब उसको 1 CR के around ही tag कर रहे हैं, and we are not pursuing luxury flats anymore after this project. Because we believe that a big segment of Odiyas are getting ignored. And that is a disservice to the state. कहीं ना कहीं it is incoherent with the vision that we have brought for Esotec and for India that we have. I think these are all factors I think will affect Odisha next 2-3 years. And for an investor who's trying to invest in Odisha, I would say buy flats which are if you're thinking of buying now, then buy luxury flats because you will get good discounts now on that. Every developer is giving discounts. But if you're thinking of buying in the next 5 years, कि मैं you're saving money and thinking कि 5 साल के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ, then I would say then go for a affordable plot, क्योंकि उसका लॉन्ग टर्म में आपको स्टेबिलिटी लेके आएगा. अगर आपको 5 साल में बेचना हो कभी उसको, तो आपको उसका एक बायर मिल जाएगा एज कम्पेयर टू अ लग्जरी फ्लैट. सो आई एम एक्चुअली सेइंग दिस इज वेरी काउंटर टू माई ओन प्रोजेक्ट, बिकॉज मैं खुद लग्जरी प्रोजेक्ट अभी बना रहा हूँ. बट बिकॉज आई डोंट वांट टू बी डिसऑनेस्ट टू योर ओन ऑडियंस, the real issue that we are also facing, and I'm sure other developers are also facing, that even though customers here they know what a luxury project looks like because everyone's connected to internet, they know what people are getting in Delhi, they what people are getting in Bangalore, they are not able to trust the developers here कि यहाँ के लोग developer कर सकते हैं same project, same quality. तो एक वो भी issue credibility. आदित्य जी, आपने लग्जरी इंट्रोड्यूस करने के बाद, लग्जरी अपार्टमेंट इंट्रोड्यूस करने के बाद आपको ये समझ आ गया कि एक लार्जर सेगमेंट इग्नोर हो रहे हैं और ये एक विशियस साइकिल है, हम फंसते जा रहे हैं. जो भी बिल्डर्स कर रहे हैं उसके बाद उनको भी ये रियलाइज़ हो रहा होगा कि हम एक साइकिल में फंस रहे हैं, एक सेगमेंट भी इग्नोर हो रहे हैं. जैसे देखिए रियल इस्टेट डेवलप कर रहा है, वैसे लोगों का परचेजिंग पावर इतना डेवलप नहीं हो रहा है, यहाँ पे ग्रो नहीं कर रहा है उड़ीसा पे. लोग यहाँ पे भुवनेश्वर में क्यों फोकस नहीं करते 1 crore के अंदर एक फ्लैट बनाए मिडिल क्लास लोगों के लिए? Like I said, the first aspect was कि everyone wants more money. तो लोगों को दिखता है कि मैं जितना महंगा फ्लैट बेचूं, फंसे ना, एक विशेष साइकिल में फंसे. उस प्रोजेक्ट के बाद क्यों नहीं सोच रहे? अभी तो मोस्ट डेवलपर्स ये फर्स्ट लग्जरी प्रोजेक्ट ही बेच रहे हैं ना अपना, उसी में फंसे हैं. एंड लाइक जैसे आपने बोला ना कि अगर किसी का नहीं बिकेगा जल्दी माल, वो 2 क्वेश्चन सोचेगा. But I told you पहले 8 years ago I came here. The same thing is that people are not aggressive enough. पहले aggressive तो कहीं नहीं थे, चलो अब अच्छा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, बट सेल्स में aggressive नहीं है. So even if they are selling 2 apartments, उनके लिए ठीक है, चलो बढ़िया, कुछ तो बिक रहा है. But that is not how you sell a proper 600-500 apartment. क्योंकि ऐसे तो आपका बन गया फिर
अगर 4 फ्लैट आपका महीने में बिक रहे तो बन गया. So we are at Aesthetic, we are very aggressive. If we're not selling more than 12 apartments a month, that means we are doing something wrong. And kahin na kahin our team also feels the same emotion. And in fact, what we have realized is that Bhubaneswar audience now has a lot of options in premium real estate. A lot of my fellow developers and competitors are now making good apartments, luxury apartments. But a large segment of customers are now getting ignored in other cities of Odisha. Cities like Baleshwar, Barampur, Sambalpur, Rourkela, Angul. All these people, they are working, either they are working in Bhubaneswar, working in these cities. They want their families to live in the capital and वहाँ से वो आना जाना करते रहे. तो उसके लिए what we've seen is that वहाँ पे अब बरमपुर में भुवनेश्वर लेवल के प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे. बट लोगों की परचेजिंग पावर ऑलमोस्ट सिमिलर है. जो भुवनेश्वर में कमा रहा है बरमपुर में कमा रहा है. देयर इज नॉट मच ऑफ डिफरेंस. 19-20 का फर्क है. बट स्पेंडिंग कैपेसिटी, जो स्पेंडिंग ऑप्शन है बहुत लिमिटेड है बरमपुर में. सो व्हाट पीपल आर नॉट रियलाइजिंग दैट हम भुवनेश्वर में रह रहे हैं तो वाई नॉट भुवनेश्वर में रह लें हमारी फैमिली. हम अप डाउन करते रहेंगे. So we have just opened an office in Barampur, by the way, 2-3 days ago. And we are planning to open multiple offices in other cities as well. And the goal is to connect with the city, the customers of these cities, and उनको भुवनेश्वर से जोड़ें कहीं ना कहीं. And obviously कहीं opportunities, if you're there in 5 different cities, so we'll get opportunities in 5 different cities as well. So to take Odisha in a different city, maybe we can launch another township in Sambalpur. If we get the opportunity. बट अगर हमारा प्रेजेंस ही नहीं होगा कभी संबलपुर में तो कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी. सो इट किल्स 2 birds with 1 stone. It also helps with the sales of our project, opening these regional offices, and also allows Aesthetic to create a space in these particular cities, create an identity. And I think we just opened an office in Manipur 3 days ago, and the type of response we're getting is astonishing. It's wonderful. Recently only we have received a big project fund from IOB Bank of almost 75 crores for my project in Avenue 7, purely construction finance. I met the regional manager in Barampur. They handle 16 districts. Even they said that no one has ever come and opened an office यहाँ पे, and there are so many investors who are ready to invest. Even they have said that everyone ignores and everyone tries to hit 3 cities. पूरी भुवनेश्वर कटक. That's it. And they forget the rest. And we also identified this gap and now we are trying to fill it. एस्थेटिक का जब मैं एस्थेटिक के बारे में रिसर्च कर रही थी, एस्थेटिक का एक कॉन्सेप्ट है सिटी इन ए सिटी. वो एग्जैक्टली क्या है? So the whole point of a township is it has everything that an end user will require. Any amenity you can think of, we will have it. Inside the project first of all. पहले प्रोजेक्ट के अंदर की बात करते हैं, सोसाइटी के अंदर की. सोसाइटी के अंदर फ्रॉम बोलिंग एली से लेकर आपका रॉक क्लाइंबिंग, प्ले स्टेशन, चेस रूम, सोना, सब कुछ यू थिंक ऑफ इट, वी हैव इट. सो दिक्कत क्या होती है आज, इफ़ यू हैव अ किड, उसको खेलने जाना है, वी हैव मल्टी स्पोर्ट्स कोर्ट. उसको ट्यूशन पढ़ना है, बाहर जाके पढ़ रहा है, सब वी हैव आवर ट्यूशन सेंटर एज वेल इन आवर क्लब हाउस. स्कूल जाना है, स्कूल भी हमारे टाउन प्रोजेक्ट के अंदर है, प्ले वे. इफ़ यू हैव अ हस्बैंड, यू वर्क योरसेल्फ, आपको अपना फॉर एग्जांपल पॉडकास्ट करना है, लाइक आई टोल्ड यू वी आर ओपनिंग अ पॉडकास्ट स्टूडियो एज वेल. विल टॉक अबाउट इट मोर एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट. आपके हस्बैंड को फॉर एग्जांपल ही इज़ वर्क फ्रॉम होम, उसके लिए हमारे पास ऑफिसेज हैं, को वर्किंग ऑफिसेज, को लिविंग स्पेसिस फॉर लॉट ऑफ बैचलर्स जिनको नहीं मिलता सोसाइटी में रहना, नहीं अलाउ करते, राइट. बहुत सारे RWS. देयर इज अ बिग गैप इन द मार्केट एज वेल. भुवनेश्वर में स्टूडेंट पॉपुलेशन बहुत है और उनके लिए अकोमोडेशन अच्छी नहीं है, ओनली PGs हैं, राइट. तो को लिविंग इज़ अ बिग एस्पेक्ट विच इज़ जो हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं. हॉस्पिटल हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं. क्रिएटर कैंपस एक हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं. एंड देन कमर्शियल्स, ऑफिसेज, लाइक एनीथिंग दैट यू कैन इमेजिन वी आर ब्रिंगिंग. इसके ऊपर से ये तो नॉर्मल चीज़ है. A lot of other towns are doing this. There's this new concept that we're bringing. It's called dynamic landscaping. What most developers do is static landscaping. Static landscaping का मतलब है आप जनवरी में आओ, आपको सेम कलर दिखेगा, और आप सितंबर में आओ, आपको सेम कलर दिखेगा. डायनामिक लैंडस्केपिंग का मतलब है आप जनवरी में आओगे, आपको सड़क पे अलग अलग फ्लावर्स के अलग अलग कलर दिखेंगे. सितंबर में आओगे, आपको अलग कलर्स दिखेंगे.
अब ये कॉन्सेप्ट जापान में होता है, चेरी ब्लॉसम ट्रीज बोलते हैं। तो वहाँ पे अगस्त से सितंबर के टाइम पे, जुलाई अगस्त सितंबर के टाइम पे वहाँ पे पिंक चेरी ब्लॉसम ट्रीज ब्लॉसम करते हैं। तो पूरा रोड एंड पूरा एरिया पिंक हो जाता है, एंड बाकी सीजन के टाइम पे इट्स ग्रीन। तो ये हम लोग अपने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे एक होगा पूरा रेड ट्रीज होंगे एक लेन में, दूसरे लेन होंगे उससे पर्पल ट्रीज, और वो कलर चेंज करते रहेंगे एज कम विद रिस्पेक्ट टू द सीजन कौन सा चल रहा है। सो दिस इज समथिंग अभी इंडिया में नहीं देख रहा। अभी बैंगलोर में एक शहर में अभी जस्ट एक लेन पे अभी है, उड़ीसा में नोबडी इज सीइंग दिस, बट इनफैक्ट आई विल सी यू उड़ीसा इज भुवनेश्वर इज वन ऑफ द दो सिटीज जो ग्रीन से एकदम कनेक्टेड है। देयर सो मच ग्रीनरी हियर इन भुवनेश्वर जो दूसरी सिटीज में आपको नहीं दिखते, बट नोबडी हैज एवर थॉट ऑफ दिस यहाँ पे। How we are trying to also explore new technologies as well, by the way. So there's this technology called um, kinetic energy that we'll be building township roads, right? Roads that are outside the project. A lot of cars will be traveling on that road day and night. So there'll be a lot of kinetic energy on the road itself that will be exerting. उसके नीचे there's this Japanese technology that we'll put electric footpaths रोड के नीचे डाल देते हैं, और पूरे दिन जो गाड़ियाँ ट्रैवल कर रही है फुटपाथ पे ऐसे धंसती रहती हैं, तो उससे एक इलेक्ट्रिक एनर्जी क्रिएट होती है, एंड उसको हम स्टोर करेंगे, एंड उसको हम यूज़ करेंगे टाउनशिप लेवल के जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, उसको पावर करने के लिए। एंड इसके ऊपर से हम एक स्टेप और कहाँ गए, सो विल बी बिल्डिंग अराउंड 15,000 अपार्टमेंट्स, अराउंड आई वुड से 150 टावर्स ऑफ रेजिडेंसेस। हर टावर के ऊपर हम लोग सोलर पैनल फिट कर रहे हैं। अब what we have calculated that we'll be having a capacity almost 3,000 kilowatts जब पूरा टाउनशिप बिल्ड हो जाएगा, सब हर जगह सोलर पैनल आ जाएंगे, उतना एनर्जी हमारे सोलर पैनल से प्रोड्यूस होगा। अब ये कैसे हेल्प करेगा? एज पर द गवर्नमेंट लॉ, जितना आप प्रोड्यूस करके ग्रिड में डालते हो एनर्जी, क्लीन एनर्जी, उतना आपके खुद के काम से कॉस्ट से कट हो जाता है। और ये किसके लिए कट होगा? ये रेजिडेंट्स के लिए कट होगा। तो रेजिडेंट्स के लिए आगे जाके जब टाउनशिप कंप्लीट हो जाएगा, जब पूरा ऑपरेशन हो जाएगा, उनका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी बहुत लो होगा बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स। एंड वी आर ऑल्सो बिल्डिंग, जैसे हमने यहाँ पे देखा है उड़ीसा में टेम्पल कल्चर बहुत है, एंड नॉट जस्ट टेम्पल कल्चर, आइकॉनिक टेम्पल्स बने हैं यहाँ पे, बट कहीं ना कहीं अब ये कोई नहीं बना रहा है। एंड मैं तो बोलता हूँ इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपर्स टू मेक श्योर ये कहते हैं ना ये ट्रेडिशन ख़त्म ना हो। सो वी हैव प्लान टू बिल्ड, मैं तो बोलूँगा रिसेंटली नाउ ओडिशा फर्स्ट नाउ रिसेंट मैन मेड टेम्पल लेक। मैन मेड टेम्पल लेक, एक लेक होगा जिसके बीच में टेम्पल होगा। अच्छा। एंड हम उसको उसी एंगल से बना रहे हैं जो ओडिशा में जिस तरीके से हैंडीक्राफ्ट एंड क्राफ्टमैनशिप से जो टेम्पल बनाया है विद ऑल द आर्ट्स, हम उसी को लेके आना चाह रहे हैं वापस यहाँ पे। एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हमें अभी तक रिवील नहीं करा है, तो मैं कुछ चीज़ें छोड़ रहा हूँ अभी। मे बी द नेक्स्ट टाइम आप मुझे बुलाओगे तो मैं उसमें तब रिवील करूँगा, बट द थिंग्स दैट वी कैन रिवील राइट नाउ विच कहीं ना कहीं आई हैव सॉलिडिफाइड फ्रॉम आवर साइड, वी हैव वर्कड ऑन रिसर्च मोर और लेस, this is what we mean city in the city, something that even someone in Mumbai has not experienced, and we believe people of Odisha deserve this. सर एक बात मुझे जानना है, आप बिल्डर हैं, आप एक आईपी लॉन्च किया आमो ओडिशा आमो गर्व, वो क्यों था? आपका क्या एम था उसको लेके? मैं अब बेटर, मैं इवन तो उड़िया बोलने नहीं आता, बट मैं ज़्यादा उड़िया हूँ बाकी उड़िया से, राइट? एंड दैट इज सेइंग समथिंग that if I know more about Odisha than the Odia people before, तो कहीं ना कहीं I feel this is why I had to create Odisha Ama Garba. And in short, it's called AOAG. We call it AOAG. And AOAG has now around 11,000 followers. We haven't spent a single rupee on digital marketing to promote the page. Everything has been organic. And what we discovered, that people are actually hungry for this type of content. They are hungry to learn about their own heritage, to be proud of their culture. मौका नहीं दिया उनको कभी प्राउड होने का, right? In fact, there's this another aspect, that another IP that we're launching soon. It's called Cult. And it's
it's the second phase of cultural development. It actually goes down to the ground level to the real people. Cult, on a nutshell, is community development. Via Cult has only one purpose: is to take all the entrepreneurial content creation, talent level, the skill level of that particular niche, whether it's podcasting, singing, restauranting, or let's say a new age startup, whatever you want to do. We want to take it to the national level, not just scale, but also in terms of quality, in terms of product, in terms of talent. We want to take that. And so we'll be launching Cult soon. And once we launch that, I'll come back again and I'll tell you all about it. And hopefully we'll have a good news again वहाँ पे. But in a nutshell, Cult is basically it'll have around 12 to 15 members with around 20 to 30 mentees, and in total it'll have a community around 40 people. And the whole goal of that community will be to promote cross collaboration and to take their own work to the next level. And the purpose of Cult is to help these people do that. That's what we're trying to do. And AOAG is basically to create awareness, to create that knowledge database, that cultural database, that anyone who doesn't know what Odisha is, or any Odia who wants to reconnect with their culture, AOG is a very good platform to reconnect with their culture. We organize a lot of events, a lot of digital content is being created around Odisha's history, around pre-independence, post-independence, what's currently happening in Odisha right now. And Cult is the second phase of that vision. Cult is to actually work with the people on the ground, not just top down, but actually bottom up. Yeah. ट्रू. आप दिल्ली से आके उड़ीसा के बारे में इतने रिसर्च किए, उड़ीसा के लोगों के नीड को इतने समझे, हम ओडिया होके शायद उतने नहीं समझे. आपको ये लगता है आप डेवलपर के हिसाब से जितने उड़िया लोगों के नीड को समझे हैं, उड़िया डेवलपर उतना नहीं समझ पाए हैं अभी? मैंने अपने आप को डेवलपर के एक कंस्ट्रेंट में नहीं फिट करता. मैं बोलता हूँ मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं एक सिटीजन भी हूँ, राइट. एंड आई एम ऑल्सो हियर टू क्रिएट अ सोशल इम्पैक्ट. मेरा पर्टिकुलर लेट्स से एजेंडा इज इन दीज 3 डिफरेंट थिंग्स, नॉट जस्ट इन डेवलपर कि यस बिजनेस सबको ही कर रहा होता है, बट anyone can talk about this. You don't have to be a developer to talk about this. You can be a fashion brand and you can talk about this, right? You can be a podcaster and you can talk about this. You can be a singer and you can make a song about this. But the whole ball game comes down to why isn't anyone doing it? Why isn't anyone doing it? So I told you this before the podcast started that a lot of people first, it's actually a strategy. A lot of people first start with a small niche. So they think that if you just talk in one particular language, then you will get a lot of followers of that language speakers. But the problem is also that if you only talk in that particular language, whether it is Marathi or Odia, it doesn't matter, then आपका sample size छोटा ही रह जाएगा. And now you will put a ceiling to your success and to your growth. So in order to actually grow uncapped, you have to create content that is nationally and internationally accessible. Odia content creators are not thinking like that right now. Because everyone is trying to start. So they're just thinking niche level. I'll start small, I'll try to capture a small segment, then I'll grow big. But I'm saying we are listening to podcasters and content creators who are from Chennai, Bangalore, who are from Vadodara and from Chandigarh. Why are they not making content in their local language? Or just covering local issues, right? But Odia content creator mein we still haven't seen this shift. And this is where I think the whole identity and cultural part comes in. Because Odia content creators, they don't think that they're cut out to compete on the national level. कि अंदर से confidence ही नहीं है उनके. And maybe इसलिए कि उनका maybe production quality उनकी इतनी अच्छी नहीं है. उनको लगता है मेरी वीडियो इतनी अच्छी नहीं है, मेरे editing इतनी अच्छी नहीं है, मैं guest इतने अच्छे नहीं लेके आ रहा. But I would say this is the real gap यहाँ पे, that unless and until you start creating content which is nationally accessible, internationally accessible, your growth will always be capped. And I think this is where Odia content creators are now kahin na kahin, they are in this purgatory.
इट इज़ बिटवीन हेवन एंड हेल में फंसे हुए हैं कहीं वो दे हैवंट मेड इट बिग बट दे आर नॉट स्मॉल, दे आर इन बिटवीन एंड नाउ एवरीवन इज कंफ्यूज कि करें तो अब कैसे ग्रो करें. हाँ. Should we just keep doing what we're doing? It becomes monotonous. Should we better our production quality? That requires a lot of capital. So they are kahin na kahin, they are I would say in a fix. So and I think there are a lot of stories of Odisha which I would think people will be very very curious to know. Some of these stories we as Asotech and our different IPs we are trying to bring it to the screen and bring it to the real life. But there is so much to talk about, so much to share with the world. And not just that, we also have this we're starting this new program in our new IP Cult that will be launching limited edition products. One will be a puffed rice bar, राइट, जैसे मूढ़ी खाते हैं बट उसको हम थोड़ा एक इनोवेटिव तरीके से पफ्ड राइस प्रोटीन बार कर देंगे हम लोग, अच्छा. राइट, मूढ़ी बट विद प्रोटीन एंड इट विल बी लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट. देन विल डू प्रोटीन खाजा क्रिस्प्स. प्रोटीन खाजा किसमिस. ओके. क्रिस्प्स खाजा क्रिस्प. एंड जैसे हम लोग सोच रहे थे हाँ टिरामिसू रसाबड़ी, राइट, ये हम कल के थ्रू पहले लिमिटेड एडिशन चीज़ें सोच रहे हैं. And the whole idea of this, छेना पोड़ो को लेके that is a different thing. So through the first IP, Amagarma Odisha, it is currently under work. So I don't want to talk about it a lot, but we are trying to come up with our own product. We are converting its IP into a physical business, and it's something very innovative. It is something related to a sweet tooth. Right, I don't want to expand on that a lot. Some things I want to leave for the next episode as well. But yeah, it's something very innovative and something a lot of people have felt, but they have not talked about it yet. यहाँ पे, and it's something very exciting and close to my heart that we'll be launching soon. And coming back to the cult aspect, that the whole point of launching all these different aspects and products is to showcase to the local to the Odias that there is so much that you can build a business on. Like even if you launch protein rice puff bar, it's a business on its own. उसके कितने flavors हैं? Sweet flavors, peri peri flavor, savory flavors. There's an entire business aspect to it. तो हम बनाएंगे 10,000 ऐसे सिर्फ only one batch, and बहुत अच्छी तरीके से we'll market it in a very innovative way. And I believe that once people see that Odisha से भी ये products निकल के आ सकते हैं, then there will be more entrepreneurs who will undertake this venture. It's to show, the whole concept is to show that there's so much to export from Odisha to India. So, and nobody is thinking like that. सबको सोच रहे हैं कि मैं उड़ीसा में ही बनाऊं, बट मैं बोल रहा हूँ उड़ीसा में बनाओ पर बेचो नेशनली. ऐसी चीज बनाओ ना जो नेशनली चले, तभी तो उड़ीसा बढ़ेगा, ग्रो करेगा, राइट. आई मीन बहुत सारे बिजनेस हैं जो टियर 2 सिटीज में, भुवनेश्वर में क्यों नहीं बड़े बड़े बिजनेस एक दो से छोड़ के, राइट. हम सिंह बन सकते हैं, डेफिनेटली बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते. कोई सोचे तो, कोई इनोवेटिवली सोच ही नहीं था यहाँ पे. सब सोच रहे हैं मैं टी शर्ट बना लेता हूँ अपना, राइट. मैं जब लास्ट पॉडकास्ट मैंने किया था तो मैंने उसमें बोला कि अगर मैं आज लोकल एंटरप्रेन्योर होता तो मैं तो संबलपुरी साड़ीज बेचता नेशनली इंटरनेशनली. इतना क्रेज है, बट देयर इज नो प्लेटफॉर्म. अच्छा, एग्जैक्टली, इतना बड़ा मार्केट है हमारा, मगर नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है. उसको अच्छे से अच्छी पैकेजिंग, अच्छी मार्केटिंग, बिस्पोक करके, लिमिटेड एडिशन पैटर्न्स, सस्टेनेबल है क्योंकि लोकल कारीगरी लोग बना रहे होते हैं यहाँ के. सो नोबडी इज डूइंग दिस, बट इंटरनेशनल लोग कर रहे हैं अपने स्कैंडिनेवियन अपने कपड़े बना रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं अपने इस तरीके से. बट व्हाई नोबडी इज डूइंग दिस. संबलपुरी साड़ी इज वर्ल्ड फेमस. यस, ऐसे नहीं से बढ़िया लोग खरीदते हैं. गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिए हैं. या नोबडी इन प्राइवेट सेक्टर इज डूइंग दिस. देखो भाई, गवर्नमेंट सिर्फ आपके लिए रोड बनाता है, गाड़ी तो खुद ही चलानी पड़ती है ना. गवर्नमेंट आपके लिए बिजनेस खड़ा करेगा नहीं. ट्रू. आपके प्लेटफॉर्म खड़ा कर देगा जिसमें ईज ऑफ बिजनेस करना ईजी है, बट बिजनेस तो खुद ही करना पड़ेगा. प्राइवेट सेक्टर ही लीड करता है कंट्री को. गवर्नमेंट कैन सेट अप अ गुड प्लेटफॉर्म एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. ट्रू. गवर्नमेंट भी प्राइवेट के ऊपर डिपेंडेंट है. गवर्नमेंट प्राइवेट पर डिपेंडेंट है. रेवेन्यू नहीं आएगा, प्राइवेट काम नहीं करेगा.
So yeah, so the idea of Esotech in a larger brand aspect is to inculcate confidence in ODIs. That is the branding idea of Esotech. कि ODIs के अंदर हम confidence regain करें. That they should be proud of their culture and they think that they deserve a luxury flat. कहीं ना कहीं. It shouldn't be कि what do I want this, ये क्या ओडिशा में चलेगा नहीं. They deserve a next level standard of living. I would say they deserve a better standard of living than Mumbai. And right now मैं ये बोल रहा हूँ what Mumbai is chasing भुवनेश्वर पहले से ही है. Low crime rate, plenty of greenery, low pollution, no traffic. मुंबई लेवल का नहीं कोई ट्रैफिक. अगर मैं ये आज 4 चीज़ें मुंबई में बोल के बेचूँ तो आई कैन कमांड एनी रेट आई वांट, राइट. नो पोल्यूशन, नो क्राइम. मैं मुंबई में करके बेचूँ कोई प्रोजेक्ट को तो आई विल गेट मुंह मांगी कीमत. बट भुवनेश्वर में मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट इज़ गिवन, इट इज़ ऑब्वियस. दैट्स व्हाई आई बिलीव Tier 2 cities will play much bigger role in India's growth. जो गलती Tier 1 city कर चुका है वो Tier 2 cities सीख रहे हैं, अब बेटर प्लानिंग करके ला रहे हैं. अगर मैं Tier 2 सिटीज़ के बारे में बात करूँ, स्पेशली भुवनेश्वर के बाद, भुवनेश्वर का अभी ब्लेंडेड एवरेज 7,500 का पर स्क्वायर फुट, उससे थोड़ा ज़्यादा शायद चल रहा है. वही अगर हम कंपेयर करें मुंबई से, बैंगलोर से, हैदराबाद से, बहुत कम है, बहुत सस्ता है. आपको क्या लग रहा है ये अफोर्डेबिलिटी जो है वो कब तक रहेगा? इसको ऐसे मत सोचो दैट प्राइसेस विल कैच अप एनी टाइम सून. प्राइसेस, बिकॉज अगर भुवनेश्वर के प्राइस बढ़ेंगे देन मुंबई के प्राइस भी बढ़ेंगे. इट वोंट बी आइसोलेटेड. अच्छा, पर एक सैचुरेशन आता है, सैचुरेशन आता है तभी शहर बड़ा होता है. मुंबई में पहले नवी मुंबई, थाने, ये सब नहीं था आज से 25 साल पहले, राइट. दिल्ली में फरीदाबाद अब कंसिडर करते हैं NCR के अंदर. फरीदाबाद नहीं था, गाजियाबाद ग्रो नहीं हुआ था. आज प्रेस्टीज जैसे बड़े बड़े डेवलपर्स गाजियाबाद में लग्जरी फ्लैट्स बना रहे हैं, राइट. फरीदाबाद में लग्जरी फ्लैट्स आने. ग्रेटर नोएडा पास नहीं था NCR साइड्स में बोलूँ तो. एज अ सिटी बिकम्स बिग, तो मतलब एज अ सिटी एज सिटीज प्राइसेस ग्रो द सिटी बिकम्स हॉरिजॉन्टली बिग. क्योंकि जो नवी मुंबई के प्राइसेस हैं वो आपके बांद्रा के प्राइसेस नहीं होंगे. नवी मुंबई में सस्ते होंगे फ्लैट्स. सेम आप यहाँ पे देख रहे हो, पहले भुवनेश्वर छोटा था, राइट. अभी हंसपाल वाला रीजन डेवलप हो रहा है. यहाँ नहीं था ना 20 साल पहले कुछ, तभी पटिया में महंगा रेट था सबसे. बट आप बोल सकते हो हंसपाल रीजन का रेट हैज कॉट अप विद पटिया, बट नहीं, इट हैज स्टिल, पटिया का रेट अभी भी ज़्यादा है ना हंसपाल से, ज़्यादा महंगा मिलेगा आपको. तो सेम कॉन्सेप्ट आप लगाओ दिल्ली और भुवनेश्वर में. फिर इफ पटिया इज मुंबई एंड हंसपाल इज भुवनेश्वर, तो यस हंसपाल भुवनेश्वर रेट बढ़ेगा. बट पटिया, ऐसा नहीं कि पटिया का रेट स्टैग्नेट रह गया है. पटिया का रेट तो ग्रो कर गया ना, सिर्फ मुंबई का भी रेट ग्रो करेगा. एंड यस हर सिटी, आपको सिटी टू सिटी कंपेयर करना इज लिटिल अनफेयर बिकॉज वन इज अ मेट्रो सिटी एंड वन इज नॉट. क्योंकि मेट्रो सिटी में माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होती है. गुड़गांव का माइग्रेशन हुआ तो आई थिंक मंथली 1 लाख लोग आ रहे होते हैं रहने के लिए गुड़गांव में. 100,000 लोग मंथली अंदर आके रह रहे होते हैं, मतलब इमिग्रेट हो रहे होते हैं. भुवनेश्वर डजंट हैव दिस लेवल ऑफ इमिग्रेशन, इवन इफ इट्स अ कैपिटल, इवन इफ इट्स एजुकेशन हब, हेल्थ केयर हब. भुवनेश्वर में इतने लोग मंथली नहीं आ रहे हैं रहने के लिए. तो अगर माइग्रेशन लो है तो नेचुरली डिमांड फॉर हाउसिंग भी तो लो ही होगा एज कम्पेयर टू अ सिटी जहाँ पे माइग्रेशन 5 टाइम्स ज़्यादा है, 10 टाइम्स ज़्यादा है. तो एंड दैट्स वाई मुंबई के प्राइसेस गिरते नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि एवरीवन वांट्स टू गो एंड लिव इन मुंबई. तो डिमांड ऑफ हमेशा हाउसिंग का बढ़े रहेगा. एंड डिमांड ड्राइव्स अ बिग प्राइसिंग इंडेक्स देन सप्लाई. कि मुंबई में फ्लैट्स भी बहुत ज़्यादा बिकते हैं तो प्राइसेस कम क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि डिमांड इज अनबीटेबल मुंबई एंड दिल्ली एंड NCR की. आप बोले कि माइग्रेशन मुंबई में ज़्यादा है, मगर हम डाटा देखें तो भुवनेश्वर के रेंटल यील्ड्स 3 to 4% है और मुंबई मैंगलोर में 1.5 to 2% है. फिर भी यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल कैपिटल इतना क्यों नहीं आ रहा है जितना आना चाहिए? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दे सी दिस नंबर कॉल्ड ROI एंड बेसिकली उनके कैपिटल पे उनको कितना रिटर्न मिल रहा है, नॉट रेंटल यील्ड कितना मिल रहा है. सो and institutional investors look more from a macro economic standpoint than just one project itself. So वो ये नहीं देखेंगे कि भुवनेश्वर में ये वाला प्रोजेक्ट में जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं वो कितना अच्छा है. वो तो ऑब्वियस है, वो तो कोई भी पैसा डालता है, एक कस्टमर डालता है वो भी देखता है. वो देखते हैं कि अगर कल को भुवनेश्वर मार्केट डूब गया
तो ये मुझसे कोई खरीदेगा वो ये प्रोजेक्ट? भुवनेश्वर मार्केट डूबने का चांसेस है क्या? पर एन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर हैज टू फर्स्ट थिंक दिस ना, पैसा उनका कहाँ से खराब होगा अगर प्रोजेक्ट डूब गया, राइट? तो प्रोजेक्ट डूब तो सिर्फ मार्केट नहीं ना, प्रोजेक्ट भी डूब सकता है। तो अगर मार्केट ग्रो भी कर रहा है तो प्रोजेक्ट डेवलपर गलती करते हैं, डूब जाए प्रोजेक्ट। तो पहले इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ये देखता है कि मेरा एग्जिट यहाँ पे एश्योर्ड है कि नहीं। इन सिटी लाइक मुंबई जहाँ पे 10 और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं और काम करते रेगुलरली, तो उनका कोई प्रोजेक्ट डूबेगा तो वो वहाँ खरीद सकते हैं, उनका नेटवर्क है। बट सिर्फ एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आके भुवनेश्वर इन्वेस्ट नहीं करेगा, दैट इज अ बिग रिस्क। यू हैव टू ब्रिंग अ कंसोर्टियम ऑन इन्वेस्टर जो मल्टीपल जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। मार्केट इन्वेस्टमेंट का बनना है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का मार्केट ही नहीं है यहाँ पे। एंड इवन दो यहाँ के रिटर्न्स आर मार्केट बीटिंग रिटर्न्स, द हेजिंग ऑफ द रिस्क अभी भुवनेश्वर में फॉर अ मैक्रो इंस्टीट्यूशन वो नहीं है। दैट्स वाई उनको यहाँ पे कहते हैं ना डिलीशियस रिटर्न्स भी दिखेंगे तभी भी नहीं आ रहे हैं, बिकॉज द फर्स्ट गोल इज इन टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, द फर्स्ट इसको सेफ गार्ड द इन्वेस्टमेंट। भले 2-3% कम रिटर्न मिल जाए बट इन्वेस्टमेंट सेफ गार्ड होना चाहिए उनका। तो वो इस एस्पेक्ट से देखते हैं। मतलब इफ देयर रिस्क कैन बी हेज्ड इन द सेंस, इफ देयर इज नो रेस्क्यू स्ट्रैटेजी, कल प्रोजेक्ट डूब गया मैं क्या करूँ, कल माल नहीं बिकेगा जिसमें इन्वेस्ट किया, फोर्स मेजोर सिचुएशन, कोविड आ गया दोबारा, क्या करें? In a city like Mumbai, Delhi, and Bangalore, when there is this ecosystem that already exists, it is easy to exit from a delayed project or a project which is stuck. But for a city like Bhubaneswar, जहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, जो first time invest करेगा, they have to be the most courageous investors. और वो macro से नहीं आएंगे। वो macro investors have, it's not their money, so they have a lot of policies to follow. They have a whole protocol to follow. Very refined filtration process. ये यूजली आएगा फैमिली ऑफिसेस से, ये आएगा HNIs से, एंड मेनली आएगा उड़िया HNIs से, जो बिता चुके हैं उड़ीसा में अपना बचपन, एक फॉर्चून कमाया एंड आर नाउ रेडी टू इन्वेस्ट इन उड़ीसा टू क्रिएट अ सोशल इम्पैक्ट एंड टू अर्न मनी, टू गेट अ गुड रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। ये सबसे ज़्यादा वो सेगमेंट है जो उड़ीसा से पैसे कमा चुके हैं, अच्छे सेगमेंट है, नाउ वांट टू इन्वेस्ट बैक, ये वहाँ से आएगा, ये वो सेगमेंट है, बिकॉज दे बिलीव इन द उड़िया स्टोरी। अगर मैं एक मुंबई के एक 5 स्टार ऑफिस में बैठा हो, एक ग्रेड ए ऑफिस में बैठ के AC में मस्त इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का CEO से बोलो कि आप इन्वेस्ट करो दूसरे कोने में जाके, ईस्ट कोस्ट में जाके, दे आर नॉट कनेक्टेड टू दैट सिटी। तो ये भी प्ले करता है, इट्स मोर पर्सनल। या पे बैक करने का टाइम आ गया है, जो भी पे बैक करेंगे तो भुवनेश्वर थोड़ा ग्रो कर जाएगा, ग्रो कर रहा है अभी। अभी गवर्नमेंट भी एक लंच किया है BCPPR, भुवनेश्वर कटक पूरी पारादीप कैपिटल डिसीजन, $500 बिलियन इन्वेस्ट करेगा बाय 2036। आप NH-16 में आपका लैंड है, आप क्या सोच रहे हैं मैं आप 5 साल आगे कैसे दिखेगा? 5 years is a short horizon for such a large scale project and investment. $500 billion is a very significant investment, जो इतने कम छोटे रीजन में कभी उड़ीसा ने करा नहीं है, राइट? इतने छोटे कॉरिडोर में। सो द फर्स्ट चैलेंज इज कि इतने कम टाइम में इतना सारा खर्चा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पैसे भी होते तो खर्चा करने का रनवे नहीं होता है गवर्नमेंट्स के पास, यूजुअली धीरे धीरे ही खर्चा होता है। द सेकेंड थिंग है कि जब इस तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है ना, तो सबसे पहले इंडस्ट्रीज़ आती हैं। इंडस्ट्रीज़ आएंगी तो जॉब क्रिएट होगा यहाँ पे लोकल लोगों के लिए, जॉब क्रिएट होगा। और जॉब ऐसे होती नहीं कि बहुत ही हाई पेइंग जॉब 10-10 लाख रुपए की नौकरी वाली जॉब्स यहाँ पे आएंगी, नहीं, नॉर्मल मिड सेगमेंट जॉब्स आएंगी। मिड सेगमेंट जॉब्स आएंगी तो अफोर्डेबल हाउसिंग बूम करेगा। एंड आई लिंक इट बैक टू माई होल रिसेशन टॉक कि अफोर्डेबल इंडस्ट्रीज आ रही, तो आप ऐसा मत सोचो कि लग्जरी फ्लैट्स बिकने लग जाएंगे। और इंडस्ट्रीज आ रही इसका मतलब है कि आपके अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं टूटेगा कभी भी, इंडस्ट्रीज आ रही हैं तो। एंड दीज आर नॉट ओडिया इंडस्ट्रीज, दीज आर नॉट ओडिया कंपनीज जो आ रही हैं यहाँ पे, जो आएंगी वेरी फ्यू, लॉट नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपनीज। अभी जो इन्वेस्ट इन उड़ीसा भी हुआ था, मेक इन उड़ीसा, आई थिंक 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ था उसमें, तो उसमें मैक्सिमम नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपनीज करी थी। तो देयर आर नो ओडिया बिजनेसमैन जो कमा रहा है और फिर उड़ीसा में वापस इन्वेस्ट करेगा। इनके ओनर सब आर नॉट, 99.99% आर नॉन ओडियाज, राइट? इनके सारी कंपनीज के ओनर्स, इंडस्ट्रीज के ओनर्स।
So they will have इसके अलावा they don't have anything else to invest in Odisha except to manufacturing में invest कर दिया and to create jobs. So the major job creation will be done in the middle class aspect. Particularly I would say 12 से लेकर up to 50 lakhs से लेकर 60 lakhs की जो segment है income annual, उस लेवल पे जॉब क्रिएशन होगा मेन. अब उस पे अफोर्डेबल हाउसिंग ही सबसे ज़्यादा बूम करेगा कहीं ना कहीं. आप कुछ प्लान कर रहे हैं उड़ीसा के लिए अफोर्डेबल हाउस के लिए? या देयर इज अफोर्डेबल हाउसिंग दो सेगमेंट्स हैं. एक रियल प्रॉपर अफोर्डेबल हाउसिंग. सो वी आर मेकिंग अप मिनी टाउनशिप नेक्स्ट टू आवर मेजर टाउनशिप. It'll have around 3,000 affordable housing apartments. LIG and MIG. LIG is lower income group and MIG is middle income group. It'll have 1 BHK and 2 BHK. And it'll start from 11 lakhs. 11 lakhs. 11 lakhs. Okay. It will have its own school. It will have its own commercial spaces, its own community store, a hall, and its own lake. हम उसका एक अपना लेक बना रहे हैं वहाँ पे. ये तो मिडिल क्लास में नहीं कहूँगी, ये लोअर मिडिल क्लास भी अफोर्ड कर सकते या हैं. लोअर में. एंड देन देयर इज नॉर्मल अफोर्ड द मिडिल क्लास अफोर्डेबल प्रोडक्ट जो हम मेनली जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं. दैट इज द सेगमेंट बिटवीन 75 लाख से 1.2 CR. वो सेगमेंट है. तो वो प्रोजेक्ट हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट वही लेके आने वाले हैं. Because that is a segment which is largely being ignored. But the reason also they have been ignored because it is very difficult to crack the product type. Because 75 lakhs से 1.25 CR में you will get a lot of customers who are aspirational, who want the most value out of their money. बट फ्रॉम अ डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू उस सेगमेंट में एक हाउस को डिज़ाइन करना, एक लेआउट डिज़ाइन करना इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ. बिकॉज इफ़ यू वांट टू स्टे इन अंडर दैट प्राइस ब्रैकेट तो आप घर के साइज को बड़ा नहीं कर सकते, वरना प्राइस बढ़ता रहेगा आपका. घर का साइज छोटा करना है उसमें भी फिर आपको बहुत सारी चीज़ें देनी है. देन यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ इनोवेशन लाइक वी सेड कि मल्टी टॉयलेट्स हमने लेके आए, मल्टी टॉयलेट फंक्शन कि एक टॉयलेट को हमने 3 दरवाजे एक दरवाजे कनेक्ट कर दिया है. तो ब्रश कर सकता है तो कोई नहा भी सकता है, तो कोई दे कैन ऑल्सो यूज द रेस्ट रूम. सो 3 बार में एक बार यूज़ कर सकता है, 3 पर्टिकुलर लोग एक रेस्ट रूम यूज़ कर सकते हैं विद फुल प्राइवेसी. तो इस तरीके के इनोवेशन लाने पड़ेंगे अगर आपको छोटे स्केल में ही बनाना है अच्छा घर. दैट्स वाई बिकॉज वी डिड दैट इन 2020 and we sold 300 crores worth of properties in 3 months, and that was during the first phase of COVID. मार्च में कोविड आया था आई थिंक. हमारा कब आया था? आई थिंक जून में हमारा गुरेरा आया था एंड 3 months में वी वर सोल्ड आउट. व्हेन पीपल वर थिंकिंग ऑफ वाइंडिंग अप द बिजनेसेस वी सोल्ड आउट आवर एंटायर सोसाइटी इन 3 months. सो वी रियलाइज ये इसलिए हुआ बिकॉज वी क्रैक दैट प्रोडक्ट टाइप. So it is very difficult to crack that product type because the segment is सबसे huge और सबके अपने अपने पर्टिकुलर प्रेफरेंसेस हैं. आपके पास प्रॉपर्टी है इसलिए आप 10-11 लाख में आप स्टार्ट करके आप घर बना के बेच रहे हो. कोई भी न्यू डेवलपर आएगा उसी रेंज में क्या घर बना पाएगा अभी? या इट ऑल डिपेंड्स आपको लैंड किस कॉस्ट में मिल रहा है. अफोर्डेबिलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट किस प्राइस पे लॉन्च कर रहे हो लार्जली डिपेंड्स ऑन लैंड. अब आपको बहुत महंगा लैंड मिल रहा है देन ऑब्वियसली आप अफोर्डेबल प्रॉपर्टी बना नहीं सकते हैं बिकॉज देन यू विल गो इनटू अ लॉस. The business model of an affordable housing project makes sense when you're making in volume. So अगर मैं 200 apartments का affordable housing बनाऊंगा in a prime area, I will be in a loss. But if I make a 2,000 apartment affordable housing apartment in outside the city, on the outskirts of the city, then I will be, then that project will be very profitable. So we did that in Ranchi as well. We delivered around 530 apartments and we sold that project in 8 months. मैं एक रिसर्च देख रही थी जिसमें जेनजी घर खरीदना चाहते हैं मगर शादी और बच्चे वो सब जल्दी नहीं करना चाहते हैं मगर घर जल्दी खरीदना चाहते हैं. ऐसा क्यों, ऐसा शिफ्ट क्यों हो रहा है? That is actually because Gen Zs have learned from millennials. Millennials and Gen Zs make major difference in their life journey. That millennials wanted to build their life and their careers and with their partner. तो वो जर्नी उनको साथ में करनी थी. What Gen Zs want to build their life, build their career, become financially stable, and then get married because they believe then they will get a better partner once they have checked out all the other lists. And they believe if they don't do all that, especially men, then they won't get a good partner.
So एक that social is stigma हो it's a गया social stigma, especially in Gen Zs, which you will not find in millennials. Millennials की thinking थी that they want to build their life together. Gen Zs की thinking they want to build their life and then get a partner, because then they will maximize their chances of getting a very good partner. You know, जब एक आदमी के पास महंगी गाड़ी और बड़ा बिजनेस और अच्छे कपड़े, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट सब होगा, then they can attract a very good partner, which is also true, right? As compared to now a person जिसका कुछ नहीं आज स्टार्ट कर रहा है, then maybe उसको उतना अच्छा आज पार्टनर ना मिले. So that is what a lot of Gen Zs are now thinking, especially males. And even female Gen Zs may I have noticed that if you say, and it's very surprising to me by the way, if you talk to a lot of female Gen Zs and you will ask for who their role model is, उनको रोल मॉडल तो पता नहीं होगा, पर उनको ये जरूर पता होगा कि दिल से कि मुझे अपनी मम्मी जैसा नहीं बनना है. ट्रू. ये जरूर बोलते हैं सब. एंड बिकॉज कहीं ना कहीं they have shifted the trauma of their mother to themselves, because their mom thought कि their mom sacrificed their career, their life to raise the kids, and the Gen Z female saw that while growing up, and she also saw her father, she also saw her brother. So she realized that life, I would much prefer to live that life than my mother's life. That's why even Gen Z females have decided that आज मैं I'm not stable in my career, I don't have a lot of saving, and if I get married and that guy turns out to be a douchebag, right, then तो my life is gone. I am on the street, right, if I become independent. So a lot of Gen Z females are thinking that I have to sort out my career, and then if I get a partner, and then if something bad happens, I will still be all right. Because a lot of mothers, you know क्या बोलती हैं कि मैं छोड़ नहीं पाई अपने हस्बैंड को, बिकॉज इवन दो मेरे पास आई हैव ऑल द राइट, ऑल द रीजंस टू लीव, बट बिकॉज मैं डिपेंडेंट थी. सो जेन ज़ी फीमेल्स का सबसे बड़ा फियर यही है दैट दे आर स्टक विद अ पार्टनर दे डोंट वांट टू बी, एंड बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट तो दे हैव टू बी देयर. सो दैट्स व्हाई जेन ज़ी फीमेल्स दे आर नाउ, मैं चेज भी नहीं बोलूँगा, दे आर running after independence. True. Literally running, like sprinting. So I would think this is why you see that Gen Zs are buying not just real estate. Real estate एक aspect है जो उनका, बल्कि मतलब Gen Zs का final goal होता है कि ये ले लिया अब मैं शादी कर सकता हूँ. तो वो final goal होता है before they promote themselves to adults, right? And first goal होता है investment, then usually comes a car, then comes taking care of your dependents, maybe your parents, maybe your sister, then you're also paying for their career, or paying for their tuition, paying for their lifestyle, the last aspect है कि अब हो गया, अब मैं घर लेता हूँ. जब वो घर ले लेते हैं then बोलते हैं अब मैं बड़ा हो गया, अब मैं शादी करने के रेडी हूँ. So I think that a lot of Gen Zs usually think of their life in this steps, कि मैं ये पहले ये करूँगा and then finally कर लूँगा, and now अब मैं रेडी हूँ शादी करने. सर मुझे लगता है फ्रीडम ऑफ स्पीच तभी आ पाएगा जब प्राइवेट प्लेयर ज़्यादा आएंगे इंडिया में, क्योंकि हम गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है. इंडिया जैसे मिड कंट्री के लिए हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, तो ऑब्वियसली हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच कॉम्प्रोमाइज होगा. The whole point of podcast and podcast चलाने के लिए you don't need 1,000 करोड़ जैसे न्यूज़ चैनल को चाहिए, 24/7 कवरेज चाहिए नहीं. You don't have to talk about all the type of news जैसे न्यूज़ चैनल. You can pick one topic, which is अगर education, तो education वाला पार्ट पढ़ रहा हूँ. You're not trying to be sensational, right? जो न्यूज़ चैनल को ad revenue चाहिए सब करने के लिए, they have to तोड़ मरोड़ the news, right? एक podcaster को ये सब करने की जरूरत नहीं है आज. They can give the news as it is, which was gap in the market. Exactly. कि as it is news नहीं मिल रहा था लोगों को, right? किसी को literally एक same incident, दो अलग न्यूज़पेपर, अलग अलग headlines. So you can't trust the news. अलग नरेशन भी. अलग narrative. So ये that is why मैं तो बोलूँगा आपको तो थैंक यू बोलना चाहिए कि उसी वजह से पॉडकास्ट इंडस्ट्री ग्रो हुई है. So we should essentially thank the newspaper and the news channel industry for particularly killing themselves, right? उन्होंने अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार दी, देखा जाए तो, because of their biasness. क्योंकि शॉर्ट टर्म पैसा कमाना था, शॉर्ट टर्म एड रेवेन्यू के लिए, लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी छोड़ दी उन्होंने. सर मुझे ये भी एक चीज़ लगता है, हम फिनेंशियली फ्रीडम हमारे पास नहीं है, इसलिए थोड़ा हम हमेशा बायस्ड हो जाते हैं. एक ग्रीडी नेचर रहता है हमारा. आपको अगर कोई बायस्ड करना चाहेगा तो आप नहीं होगे,
क्यों हो गए? ऐसा नहीं है। नहीं, वो तो एक नेचर होता है, मगर मैं एक ब्रॉडर टर्म में बोलती हूँ। अगर अमेरिका में हम देखते हैं सब फिनेंशियल फ्रीडम है, प्राइवेट प्लेयर ज़्यादा है, गवर्नमेंट के ऊपर इतना डिपेंडेंसी नहीं है। अगर इंडिया में हम देखें तो फिनेंशियली हम गवर्नमेंट के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। हम अभी भी सोचते हैं गवर्नमेंट जब बहुत बड़ा है, अगर को आप बोलोगे यहाँ पे एक डेवलपर है और गवर्नमेंट जब है, वो गवर्नमेंट जब ही प्रेफर करेंगे क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी है। तो वो इसलिए है बिकॉज इंडियन फैमिलीज आर अफ्रेड टू सी देयर चिल्ड्रन फेल। एग्जैक्टली वो क्यों है? वो इसलिए है, वो फिनेंशियल फ्रीडम हमारा नहीं है। उनको लगता है कि जैसे हमारे माँ बाप सोचते हैं कि मेरे माँ बाप ने, मतलब हमारे दादा दादी ने जैसे ज़िंदगी निकाली वैसे और दोबारा ज़िंदगी नहीं निकाली। हाँ भाई। तो उन्होंने देखा कि उनके माँ बाप ने सब तो ज़मींदार थे, सब फार्मिंग करते थे एंड ऑफ द डे, ठीक है। तो दिक्कत क्या थी, मतलब कहीं ना कहीं सब पुअर ही थे इंडिया में। ऐसा नहीं कि बहुत पैसे सबके पास, एक टाइम पे सब पुअर ही थे एट टाइम। सबने सबके दादाजी के टाइम पे, दादा दादी के टाइम पे, जब इंडिपेंडेंस पे, जब हमारे दादा दादी छोटे थे, तब से उन्होंने देखा दैट द बेस्ट वे टू गेट आउट ऑफ पॉवर्टी इज टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब, एग्जैक्टली। सरकारी नौकरी। और वो पोर माइंडसेट अभी तक चेंज नहीं हो रहा है। हाँ, वो चेंज इसलिए नहीं होगा कि अभी जनरेशन इतनी निकली नहीं, 2 जनरेशन तो हुई थी। हाँ भाई। एक बेबी बूमर्स और मिलेनियल्स। जेनजीज के टाइम पे तो वो शिफ्ट आया। मिलेनियल्स जब एंड ऑफ मिलेनियल्स एंड स्टार्ट ऑफ जेनजीज क्रिएटेड द स्टार्टअप कल्चर एंड इकोसिस्टम, राइट। वो इकोसिस्टम कल्चर इसलिए आया बिकॉज देयर वाज अ शिफ्ट इन माइंडसेट एंड पर्सपेक्टिव। नहीं आता तो सब यहाँ भी सोच रहे होते गवर्नमेंट जॉब ही कर लो। एंड इफ यू सी लॉट ऑफ जेनजीज, लॉट ऑफ मिलेनियल्स who didn't have funding, who didn't have backing, उन्होंने भी स्टार्ट किया बिजनेस अपना, जो पहले नहीं सोच ही नहीं सकता था कि जॉब करने वाला आदमी का बेटा जॉब ना करे बिजनेस खोल, सोच ही नहीं सकता था, राइट, कोई। बट अब इफ यू सी सब कर रहा है। हाँ। हर कोई कर रहा है ऑलमोस्ट एवरीथिंग। 2 रीजन। फर्स्ट, एंट्री बैरियर्स ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस बहुत कट गए, कि ईज ऑफ बिजनेस इंडिया में करना ईजी हो गया ओवर द ईयर्स। क्योंकि जब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स बड़े हो रहे थे, हमारे पेरेंट्स बड़े हो रहे थे, इंडिया वॉज अ सोशलिस्ट कंट्री। सोशलिस्ट कंट्री में ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर को इतना पुश नहीं किया जाएगा। और अब हम जहाँ बड़े हुए हैं और हमारे बच्चे जहाँ बड़े होंगे, इंडिया विल बी कैपिटलिस्ट एंड मोर कैपिटलिस्ट कंट्री, सो विल बी ईजियर टू स्टार्ट अ बिजनेस दैन टू गेट अ जॉब। ट्रू। पहले इट वॉज ईजियर टू गेट अ जॉब दैन टू स्टार्ट अ बिजनेस। आज इट इज ईजी टू स्टार्ट अ बिजनेस दैन टू गेट अ जॉब, राइट। एंड पहले it mattered more if you were a specialist in your particular niche. Now it matters more if you are a generalist. Exactly. Right? So standards have changed in today's world. So yeah, that's about it. हाँ, हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बोल रहे थे। हाँ, one last thing about freedom of speech. एलॉन मस्क ने ना इंटरव्यू में बहुत बढ़िया चीज़ बोली थी, which actually got stuck with me. उससे पूछा एक इंटरव्यू ने, बाय द वे, दैट ही जस्ट हैड बॉट उस समय ट्विटर एंड रीनेम करके एक्स बना दिया था। एंड एलॉन मस्क वाजंट एक्सेप्टिंग द डिमांड्स ऑफ द एडवर्टाइजर्स। एडवर्टाइजर्स बोल रहे थे, बड़े बड़े एडवर्टाइजर लाइक डिज्नी एंड ऑल, वो बोल रहे थे दैट आप अपने प्लेटफॉर्म में कुछ टॉपिक्स को कंडेम करो, कुछ टॉपिक्स को बाहर मत आने दो, तभी हम आपको ऐड के लिए पैसा देंगे अपने लिए। एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का पैसे आते थे ऐड से सिर्फ। You know what Elon Musk said? Elon Musk तो इंटरव्यू ने पूछा कि आप क्यों नहीं बात मान लेते, तो आपका कम पैसे लूज हो रहे हैं आपके। Elon Musk ने बहुत बढ़िया मूवी कोट करी। उसने कोट करी कि प्रिंसेस डायरीज मूवी, सब फीमेल फेवरेट मूवी, राइट, प्रिंसेस डायरीज। एंड ही सेड दैट उसमें एक सीन आता है वेयर हीरो से विलन पूछता है, बोलता है कि विलन हीरो के बाप को मार देता है, और विलन हीरो से पूछता है कि मैं क्या करूँ जिससे तुम मान जाओ, ठीक है, तुम मुझे भूल जाओ, मुझे फॉरगिव कर दो। तो हीरो बोलता है दैट गिव मी मनी, गिव मी पावर, आई डोंट केयर, राइट। तो फॉर मी कहीं ना कहीं इट इज ऑल्सो लिंक टू दैट। इट इज लिंक दैट freedom of speech is more important to me than my profit. It is more important to me than my position. And if I can't say what I want to say, then what is the point of earning so much money? What is the point of doing such big business, right? We can't even say what you want to say. So that's why and I believe that freedom of speech allows, a country to come up with great ideas and to reject bad ideas, by the way. क्योंकि because कहीं ना कहीं
people who believe in freedom of speech, they believe in the people of that country. Because if I believe freedom of speech, then I believe that my fellow citizens are intelligent enough and morally right enough that कोई अगर बेकार आइडिया, killing, hate speech लेके आएगा तो then they will reject it. True. And कोई अच्छा आइडिया then they will accept it. उनको force करने की जरूरत नहीं है. That is why I believe in freedom of speech. And I think a lot of Gen Zs also believe in that. I think people can make the right decision without enforcing anything on them. वो belief आप में रहेगा, then you don't need, then freedom of speech से सारे ideas अच्छे निकल के आएंगे, कोई टेंशन नहीं. And if you discuss ideas, तभी पता चले कोई idea अच्छा है बुरा है. Freedom of speech allows you to discuss ideas. True. And any country which didn't allow freedom of speech, they've all failed. They've all failed ultimately. ट्रू. मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट है वो इकोनॉमिक अफेयर्स में अगर ना रहे, सिर्फ पॉलिटिकल अफेयर्स और पॉलिसी मेकिंग में रहे, तो मुझे लगता है ज़्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच आ सकता है उस कंट्री में. अगर इकोनॉमिक अफेयर्स में भी वो रहता है और एक मेजर रोल प्ले करता है, तो वहाँ पे किसी ना किसी तरह फ्रीडम ऑफ स्पीच थोड़ा कंप्रोमाइज़ होगा, क्योंकि हम सब इंटरडिपेंडेंट हैं. अगर हम गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है और गवर्नमेंट के अगेंस्ट हम कुछ बोल नहीं सकते. अगर मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट हूँ तो मैं आपके अगेंस्ट कुछ बोल नहीं सकते. आप मेरे ऊपर एक्शन ले सकते हैं. और सोशली मेरा बच्चा होगा, मेरे पेरेंट्स होंगे, मैं तो डरूंगी. मुझे लगता है इकोनॉमिक अफेयर्स से गवर्नमेंट जितना दूर रहेगी, मुझे ये लगता है, और शायद फ्रीडम ऑफ स्पीच उतना बढ़ सकता है. I think you're absolutely right. And yes, and तभी आप देखोगे इंदिरा गांधी जी ने तो बैन कर दिया था, प्रेस वालों को जेल में डाल दिया था, राइट, कि सरकार के अगेंस्ट कुछ बोलते थे. आज इस लेवल पे नहीं है फ्रीडम ऑफ स्पीच का आउट. एंड वो इसलिए हुआ बिकॉज वी हैव बिकम फाइनेंशियली लेस डिपेंडेंट, इकोनॉमिक लेस डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट ओवर द लास्ट 70 years. पहले तो 100% डिपेंडेंट थे, अब मैं बोलूँगा मे बी 50% हो आज के 70 साल बाद. एंड मे बी 25-30 years later विल बी इवन लेस. सो and I believe that freedom of speech जैसा aspect, so there's this thing called Maslow's hierarchy of needs. And पहले लोगों को क्यों फ्रीडम ऑफ स्पीच इंडिया में लोगों को फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि जब रोटी कपड़ा मकान नहीं हो हाथ में, तो लोगों को फर्क नहीं पड़ता क्या मुंह से निकल रहा है क्या नहीं. तो जब ये चीज़ हो गई, सब इक्वालिटी लेवल पे सॉल्व हो गया है प्रॉब्लम, रोटी कपड़ा मकान एक लेवल पे सॉल्व हो गया इंडिया में, राइट, बेसिक नीड्स पूरी हो गई. नाउ पीपल कैन फाइनली फोकस ऑन कि भाई उनके साथ क्या हो रहा है, उनके अनफेयर हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, अब इस पर फोकस कर सकते हैं. और जब ये फोकस हो जाता है देन सबके टॉप पे होता है एनवायरनमेंट, कि जब अपनी नीड्स पूरी हो गए, अपनी वांट्स पूरी हो गए, देन यू विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द एनवायरनमेंट्स वांट्स एंड नीड्स, द सोसाइटीज वांट्स एंड नीड्स. अभी हम इंडिया उस स्टेज पे नहीं आए कि हम एनवायरनमेंट के बारे में फुली सोचे. तभी यूरोपियन एंड अमेरिकन कंट्रीज, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज ये सोचती है, क्योंकि उनका मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स में वो उनके सिटीजन्स बहुत आगे निकले हुए. हम लोग अभी सेकंड स्टेज में अटके हुए हैं. Environment in terms of environment in terms of society, in terms of other people, in terms of environment as well as environment की green sustainability, right, pollution, उस एंगल से lot of Indians still don't care, right, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान ही उनके पास. तो जब अपने वाला ध्यान रखेंगे तो दुनिया कैसे ध्यान रखेगा कोई अपना, राइट. तो मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. हम लोग मेट्रो सिटी में कोई बैठ के या कोई एनआरआई बैठ के बोलता है यार इंडिया को क्या कुछ नहीं कर सकता ये सब, वो इसलिए क्योंकि उनकी मैस्लोस हायरार्की नीड्स में लॉट ऑफ इंडियंस आर स्टक इन द फर्स्ट स्टेज. उनका खुद रोटी खाने के लिए कल का खाना नहीं है उनके पास, शाम का रात का. तो वो इस कारण सोचेंगे कि ये सोचेंगे कि यार पेड़ मर रहे हैं, कोई नहीं सोचेगा इस तरीके. उनको नहीं सोचना है. और एक चीज़ मुझे लगता है इंडियन के है, थोड़ा माइंडसेट में प्रॉब्लम है. अगर कहीं पे हमको सब्सिडी मिल रहा है और कहीं पे हमको वर्क मिल रहा है, हम सब्सिडी ही चूज़ करते हैं. वो थोड़ा मुझे लगता है वो थोड़ा दिक्कत है ना. गिव अ मैन अ फिश एंड यू विल फीड हिम फॉर अ डे एंड टीच हिम हाउ टू फिश एंड यू विल फीड हिम फॉर लाइफ. बट देखो ये सारा गेम तो पॉलिटिक्स का है. ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स सबको पसंद आते हैं एज कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स, क्योंकि शॉर्ट टर्म रिजल्ट दिखते हैं आंखों के सामने. तो किसी को दिख रहा है कि मैं आपको आपका एजुकेशन बढ़ाऊंगा, आपका स्कूल बनाऊंगा, ये सब करूंगा, और उसका बनाने में 3-4 साल, अप्रूवल में 2-3 साल टाइम है, एज कम्पेयर टू बोलेंगे मैं बिजली फ्री कर देता हूँ इमीडिएट. सो फ्रॉम अ कम्युनल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम यू नो Freud said
that mob mentality is the worst mentality to follow, right? And this is mob mentality. Going after subsidy is mob mentality. And ये है ही इसलिए because politicians are giving options, right? But again, I will say कि this is a vicious cycle also. या वो ऑप्शन नहीं We देंगे तो need वोट it. नहीं मिलेगा. We But- want it. बट आप बोलो भाई सब्सिडी देना, सब्सिडी नहीं दे सकता कोई भी. बना दो रूल, सब्सिडी नहीं दे सकता फ्री में कोई भी. फ्री बीस में हमारा जितना सब्सिडी आप तब, अब सबसे दुख की तो ये बात है, एजुकेशन आई थिंक में 1 लाख करोड़ डलता है एंड सब्सिडीज में आई थिंक 10 लाख करोड़ जाते हैं, राइट? इट शुड बी ऑपोजिट, राइट? इनडायरेक्टली हमारा ही हार्म हो रहा है. हाँ. हम ये नहीं समझ रहे. आपके बच्चे को मेहनत करने का मन नहीं करेगा, आपको बाहर जाकर काम करने का मन नहीं करेगा. आप अपने फैमिली को बेटर, कहते हैं ना, हमारे पेरेंट्स को सब्सिडी नहीं मिलती थी, हमारे ग्रैंडफादर को सब्सिडी नहीं मिली थी, सो दे मेड श्योर कि उनके बच्चे उनसे बेटर जिंदगी जी सके, तो उन्होंने मेहनत करी. अगर आपको कंफर्टेबल लाइफ कर दी तो आप नहीं करोगे मेहनत, तो आपके बच्चे फिर उसी ही लाइन में रहेंगे. And then you will be stuck in that poverty. ये सब्सिडी का कोई गारंटी भी तो नहीं है, एक टाइमलाइन भी तो नहीं है. हाँ, ये गवर्नमेंट है, अब मिल रहा है, दूसरा गवर्नमेंट चेंज हो गया, नहीं मिलेगा. लाइक आई सेड, शॉर्ट टर्म 5 साल में तो मिल रहा है. लोग तो ऐसे सोचते हैं 5 साल की तो जिंदगी मैंने बना ली. मैं इसमें अगेन मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स आता है. कोई 10 साल आगे का तब सोचेगा ना जब उसका पहले के 1-2 साल सॉलिड हो. जब मेरे को यही नहीं पता कि मैं कल कहाँ से खाना आएगा मेरा, मैं 10 साल का आगे क्यों सोचूंगा, राइट? सो ये सब घूम फिर आके गवर्नमेंट पे आता है. आप सब्सिडी देना फ्री हटा दो भाई, मैं तो बोलता हूँ. एंड अगर देना भी है, इट शुड बी ऑपोजिट. It shouldn't be 10% in education, 90% subsidy. It should be 10% subsidy and 90% in welfare and healthcare, right? इतना पैसा हेल्थ केयर में डल जाए हर साल, इंडियन डेथ मोर्टेलिटी रेट कम हो जाएगा. Exactly. Right? But so this will require a new generation of politics and bureaucrats, politicians, bureaucrats. Exactly. And this is what Gen Z is ultimately demanding. Exactly. Yeah. क्योंकि उनका बेसिक नीड पूरा हो गया है. हाँ. उनका फादर के पास कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ Gen मनी है. Zs are the सबसे आगे निकले हुए in Maslow's hierarchy of needs. That's why उनके standards toward their politicians and bureaucrats and their elected representatives are highest as compared to millennial and baby boomer. आप बोले कि गवर्नमेंट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सिटीजन की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एज ए बिल्डर, आप जब घर बनाते हो, एक रियल इस्टेट इंडस्ट्री में आप हो, जब हम ग्रोथ के बात करते हैं थोड़ा एनवायरनमेंट कंप्रोमाइज़ हो जाता है. हम ग्रीन एनवायरनमेंट के बाद बात करते हैं. आप जब घर बनाते हो, एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाते हो, एनवायरनमेंट को आगे रख के आप घर प्लान करते हो. Yes, absolutely. In fact, it all starts from step 1, from design. Like I told you कि अगर मैं अपने घर के रूम का डिज़ाइन जिस साइज़ ऑफ टाइल से लगा रहा हूँ, मैं वो इस हिसाब से लगाऊंगा और वेस्टेज कम होगा. नेचुरली मुझे कम टाइल्स खरीदने पड़ेंगे, वेस्टेज कम होगा तो कम गार्बेज में जाएगा ये सब चीज़ें, राइट? Like I said, step 1 starts from design. The second step is construction technology. अब the reason we chose My One wasn't just कि हमारा फास्ट स्पीड से होगा, it was also that अगर सोचो इतने बड़ा स्केल का प्रोजेक्ट 1700 फ्लैट्स, अगर मैं ब्रिक्स यूज़ करता, इमेजिन कितने ब्रिक्स लगते हैं, एंड ब्रिक्स आर नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली. सो हमने ब्रिक्स नहीं यूज़ किया एंड My One यूज़ किया, तो हमने इमेजिन हाउ मेनी ब्रिक्स वी सेव्ड फ्रॉम नॉट यूजिंग. सो यू हैव टू सस्टेनेबिलिटी, आपको रिलेटिव एंगल्स, अपॉर्चुनिटी सेव के एंगल्स देखना है कि अगर मैं इसके बजाय ये करता तो मेरा इतना एक्स्ट्रा कार्बन फुटप्रिंट ऐड ऑन हो जाता. तो मैं तो बोलता हूँ इतना कार्बन फुटप्रिंट हमने ऐड नहीं किया, दैट इज अ सेविंग, राइट? सिमिलरली सोलर एनर्जी जो हम हार्नेस कर रहे हैं फॉर आवर सोसाइटीज, दैट इज डूइंग 2 जॉब्स. एक तो एज पर गवर्नमेंट लॉ जो हम जितनी भी सस्टेनेबल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो हमें ग्रिड में देना पड़ता है, हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते. बदले में जितना हम दे रहे हैं उतना वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल से कम कर देते हैं, उतने यूनिट्स. सो वी आर डूइंग दैट फॉर द रेजिडेंट्स, लाइक आई टोल्ड यू. द थर्ड एस्पेक्ट दैट वी विल बी यूजिंग kinetic pads to store kinetic energy and then convert it into electric energy on our township routes. वो इसलिए that we don't want the government का electricity bill बढ़े टाउनशिप पे ऊपर, क्योंकि कोई सोसाइटी, कोई रेजिडेंट तो बाहर के, उनके सोसाइटी के बाहर का बिल तो नहीं पे करता ना बिजली का, अपने अंदर के मेंटेनेंस पे करते हैं सोसाइटी के अंदर का. सो बाहर का टाउनशिप का सारा मेंटेनेंस कॉस्ट सरकार पे आ जाता एक टाइम पर. तो उसको कम करने के लिए हमने वहाँ पे काइनेटिक पैड्स लगा रहे हैं ताकि लॉन्ग टर्म चले. एंड अल्टीमेटली जो
नॉन सस्टेनेबल एनर्जी है जिसमें इंडिया मेनली कोल से आता है, राइट, वो कम यूजेज होगा अगर हम अपना सोलर पैनल लगाएंगे ज़्यादा. ग्रीनरी एस्पेक्ट्स लाइक आई टोल्ड यू, डायनामिक लैंडस्केपिंग हम लोग कर रहे हैं, which is something unheard of in Odisha. And you live in this society, right? You've seen the type of landscaping, the type of greenery that we're bringing in. You will not see कि ये concrete jungle है, like you go and feel in other societies. You will feel कि ये भुवनेश्वर का ही एक extinction है. वो natural. आप बाकी society में जाते हो, you'll see a lot of grey thing. यहाँ पे आप grey नहीं देखोगे. This is a deliberate effort that हमने डाला है that ये आपको नेचुरल भुवनेश्वर एक्सटेंशन लगेगा. इट वोंट फील डिफरेंट कि भुवनेश्वर इज वेरी ग्रीन. सिमिलरली हमारे प्रोजेक्ट में हमने बहुत बड़े बड़े पेड़ लगाए, आपको नहीं दिखेंगे वो बड़े बड़े पेड़. मैक्सिमम यहाँ पे आपको दिखेगा 10 पाम ट्री लगा दिए, वो दिखाने के लिए लाइफस्टाइल, बट दैट इज नॉट ग्रीनरी ऑफ भुवनेश्वर. एग्जैक्टली, राइट. Yeah, and we are actually giving out 1,000 plus trees in our society in our Avenue 7. That is unheard of. Forest हम लोग डेवलप कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में. अब दिक्कत क्या होती है कि फॉरेस्ट डेवलप कर रहे हैं बहुत. मैं बताता हूँ आपको. आप चंडीगढ़ फॉरेस्ट गए हो कभी? हाँ. तो चंडीगढ़ फॉरेस्ट में होता है ना कि इतने लीव डेंस होते हैं कि सनलाइट पास नहीं करता है नीचे ज़मीन पे, एंड दैट इज एन की एस्पेक्ट ऑफ अ फॉरेस्ट. अब एक रेजिडेंशियल सोसाइटी में क्योंकि आपको इतनी गाड़ी की पार्किंग देनी पड़ती है, हर घर में 2 पार्किंग होती है, 1000 फ्लैट बना तो 2000 पार्किंग दो आप. दैट इज अ मॉल लेवल पार्किंग, राइट. 2000 पार्किंग के लिए आपका बेसमेंट या पोडियम लेवल निकल जाता है. तो जब आपका टॉप सॉइल हट गया, कंक्रीट से बना है, तो आप बड़े बड़े पेड़ नहीं लगा सकते वहाँ पे. तभी आप देखोगे मोस्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में छोटे छोटे लो हाइट लैंडस्केपिंग दिखेगी. हम अब क्या कर रहे हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट, वी हैव इनोवेटिवली डिजाइंड इन सच अ वे दैट जो पूरा फ्रंट वाला एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट का टॉप सॉइल हम नहीं छेड़ रहे. तो वहाँ पे हम बड़े 30 40 इवन 50 फीट जब ग्रो हो जाएंगे, 50 फीट के पेड़ आपको सोसाइटी के अंदर दिखेंगे. एंड इट विल क्रिएट द सेम एस्पेक्ट जो आपको चंडीगढ़ फॉरेस्ट के नीचे खड़े होके आपको दिखेगा कि सनलाइट विल नॉट पास थ्रू द लीव्स, एंड दैट इज समथिंग दैट यू विल वोंट फील आप सोसाइटी में. यू विल फील कि आप जंगल के नीचे खड़े हो और जॉग कर रहे हो जंगल में. यू विल फील दैट इट विल हैव इट्स ओन इकोसिस्टम. बर्ड्स चर्प कर रहे हो एग्जैक्टली जैसे जंगल में फील होता है, वैसा आपको फील होगा. नाउ दैट इज एन एस्पेक्ट दैट यू विल नेवर गेट इन अ सोसाइटी. यू विल नेवर गेट इन सोसाइटी. बट आई फील जितना मैंने उड़ीसा देखा है, दैट इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ उड़ीसा. और जो लोगों ने आज से 50 साल पहले जैसे रहते थे, इंटीग्रेटेड विद नेचर ओडियाज, हम वही चीज लाना चाह रहे थे वापस अपने सोसाइटी. इट हैज टू बी इंटीग्रेटेड विद नेचर. वी आर एक्चुअली, उड़ीसा के वाटरफॉल्स इतने फेमस है, हम लोग फर्स्ट टाइम वाटरफॉल बना रहे हैं अपने सोसाइटी में. वाटरफॉल सोसाइटी में बना रहे हैं या क्लब हाउस के टॉप लेवल से आके ग्राउंड लेवल पे वाटरफॉल आ रहा है. अच्छा. या सो अगेन अनहर्ड ऑफ. सो वाटरफॉल्स का जो साउंड है, दैट इज नेचुरली वेरी सूदिंग एंड मेडिटेशन लाइक, अगर आप देखोगे. सो द होल एनवायरनमेंट जो हम क्रिएट करेंगे, इट इज मोर वेलनेस रिगार्डेड, इट इज मोर ग्रीनरी ओरिएंटेड, एंड इट इज नॉट आर्टिफिशियल. लॉट ऑफ लाइफस्टाइल जो आप देख रहे हो, इट इज वेरी आर्टिफिशियल ओरिएंटेड, एमिनिटी ओरिएंटेड. लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. हमने ग्रीन एंड सस्टेनेबिलिटी ओरिएंटेड बनाया, दिस एंगल फॉर सस्टेनेबिलिटी. सो दीज आर ऑल एस्पेक्ट्स दैट वी डूइंग फ्रॉम डिजाइन एस्पेक्ट टू दिस एस्पेक्ट. ट्रू. जैसे मैं बोल रही थी ना, कोई मेरा पेरेंट्स आ रहे हैं तो उनको कुछ अलग नहीं लगेगा, उनको लगेगा पेड़ है, यहाँ पे बिठने का जगह, नेचुरल लगेगा, नेचुरल लगेगा. उनका फिजिकल हेल्थ भी अच्छा रहेगा, मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहेगा. बहुत बड़ा इनिशिएटिव भी आप ले रहे हैं, जैसे आप बोल रहे हैं फॉरेस्ट बना रहे हैं. अगर वही सब हमारे डेवलपर्स सोचे, अगर करें, तो मुझे लगता है जो हमारा एनवायरनमेंट जो बड़ा इशू है, आप तो दिल्ली में रहते हैं, वो वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स वो तो लोअर ही जा रहा है, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है और हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तरफ जा सकते हैं. ये सब चीज़ें डेवलपर्स नहीं सोचते हैं जो आप सोचते हैं. देखिए, ये सब सोचने के लिए ना आपको अपना रेवेन्यू लॉस करना पड़ता है. बड़ा सा पौधा फॉरेस्ट बनाने के लिए उतना बड़ा पेड़ का एक कॉस्ट 1 करोड़ रुपये होता है, एक पेड़ का कॉस्ट. अब कौन करेगी? मोस्ट डेवलपर सोचते हैं कि प्रोडक्ट है, घर बनाओ निकलो. वी डोंट टेक दिस अप्रोच. लाइक आई सेड, वी नो कि यहाँ पे लोगों 20-20 साल लोगों की जिंदगी निकल जाएगी हमारे घर में. उनका जिंदगी अच्छी है कि गंदी है, इट विल एसोटेक होम विल प्ले अ ह्यूज पार्ट इन दैट, राइट. सो मैं से लोगों को घर नहीं बना रहा हूँ, मैं एक तरह से उनकी ज़िंदगी क्यूरेट कर रहा हूँ.
So this is a very serious job, and we believe ki people. I don't think that Delhi Odia people want to live like people who live in Delhi or Mumbai. I believe यहाँ की अपना खुद का sense है कि उनको कैसे रहना है, and it is linked with the natural beauty of Bhubaneswar and Odisha. It has to be linked with that. It can't be a resort. जैसे दिल्ली मुंबई में रिजॉर्ट स्टाइल बेचते हैं. It can't be that. It has to be linked with the heritage and the green aspect of this city. You know what makes Bhubaneswar Bhubaneswar. ट्रू सर. Yeah. सर रेरा इंट्रोड्यूस होने के बाद आप क्या देख रहे हैं बायर पर्सपेक्टिव से, क्या चेंज आया है रियल एस्टेट में? So buyers का confidence definitely बहुत बड़ा है. They now believe and they also understand that they have government on their side if something goes wrong, and they also understand that the real estate sector being largely unchecked before 2016, before the introduction of RERA. Now that RERA is here, a lot of safeguards are in place. Safeguards, simple safeguard जैसे एक स्टैंडर्ड बिल्डर बायर एग्रीमेंट जिसमें डेवलपर अपने मनमर्जी से पॉलिसीज ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, राइट. दैट वाज अ मेजर थिंग फॉर अ बायर. द सेकंड एस्पेक्ट वाज कि फॉर डिले इन पोजेशन, विच इज द एलिफेंट इन द रूम फॉर आवर इंडस्ट्री, राइट, कि ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट रियल एस्टेट डेवलपर डिले होता है. अब कुछ डिलेज नॉर्मल होते हैं छोटे बहुत, कुछ डिलेज 10-20 साल के लिए हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं प्रोजेक्ट. 2016 से पहले होम बायर का कोई एक रेमेडी नहीं थी हाउ टू डील विद दिस, एंड देयर वाज lakhs of home buyers who were stuck in this particular situation. RERA also brought in standard policy guidelines कि कैसे इसको डील करना है by giving out I think SBI level interest rates and creating RERA courts जहाँ पे instantly and fast track हो ये सारे cases. So कहीं ना कहीं this was a very big gap which home buyers felt. And for developers, RERA made sure that they didn't just become another regulatory body जिससे उनको deal करना हो. They understood कि they first of all they made a policy that every project will be approved within 1 month. So that was a very good policy. They will be either rejected or approved within 1 month. It won't be held. It won't be stuck for like a year and then finally पैसा दो and then काम निकालो. RERA ने finally बोला they don't work like that. उन्होंने 1 महीने में या तो आपको accept करेंगे या तो reject करेंगे. उस दिन उसको दोबारा apply करना अगर reject होता है तो ठीक करके. So RERA works under that condition. Quarterly reports, Asotech submits every quarter to RERA about how many inventory we sold, how much money we spent in construction, are we on track with our schedule or not. So everything this RERA does, right? So this has increased confidence and the credibility बोलते real estate industry में वो बढ़ गया है. People are now ready to invest in a project which is just launched, उसका एक ईंट भी नहीं लगी है, वो ready invest करने के लिए because of RERA now. जहाँ पहले 4 क्वेश्चन और पूछते थे, now that they see it's RERA certified, मतलब RERA has already seen all the documents. That's the main aspect. Yeah. अगर रेरा में कोई रिफॉर्म आना चाहिए तो आप सोच रहे हो रेरा में कुछ रिफॉर्मेशन होना चाहिए या फिर जैसा है वैसा रहना चाहिए? I think RERA is more or less correct. The reform that needs to be done is in municipal authorities. Municipal authorities, it's not because it's doing a bad job. No, reforms are required because usually these institutions are not able to keep up with the progress of the society, and the demands and preferences change, how they change within a population, right? Just like Gen Z's का buying pattern change हो गया from millennials, उतनी जल्दी policy change नहीं हुए on district and state level, city level. तो a lot of policies ओडिशा में अभी outdated हैं, old हैं. जैसे I'll give you an example. We were trying to build a movie theater here in Odisha. And when I learned that यहाँ पे policies कैसे हैं, तो policies तब के टाइम से जब से moving cinema था, moving cinema आप समझते हो क्या है? जब गाँव में जाके white चादर पे वो प्रोजेक्टर प्ले करता था और सब प्लास्टिक की कुर्सी पहन के मस्त दिखते थे. उस टाइम की जो पॉलिसीज हैं वो अभी तक चल रहे थे 2 years ago, 2-3 years ago. एंड किसी ने चेंज, nobody bothered to get it changed. But if you compare these policies to other states' policies, तो वो थोड़ा आगे निकल गए हैं उस एंगल से. तो आई बिलीव ऑन अ genuine level, this from a developer point of view, this requires major overhaul. Even though the people who work in the municipal authority, they are very much motivated, engaged with the private sector, with the CREDAI body. They are ready to take on initiatives to make Bhubaneswar a much more developed city.
But the problem lies in the system itself, not the people. The problem is in the system of municipal authority. The problem is that, ultimately the policies are not up to date. Main वो thing है. And if you compare it to policies of UP, then the UP is way ahead. And now that I believe that both the states have, double engine, तो कहीं ना कहीं जो यूपी का पूरा हिस्सा वो उड़ीसा में दिखना चाहिए हमें कुछ टाइम में. पॉलिसी जो रिवाइज होता है वो कितने टाइम इंटरवल में होना चाहिए? कितने टाइम पे होना चाहिए? देखिए, मैं तो बोलता हूँ जिस लेवल पे हम ग्रो कर रहे हैं, AI भी आ गया, तो अब तो हर 6 महीने में एटलीस्ट इसको लेके एक प्राइवेट एंड गवर्नमेंट मे बी कॉन्फ्रेंस हो, भले ही एवरी ईयर चेंज हो. ऐसे तो 4 साल में एक बार होता है चेंज, 4-5 साल में, बट एवरी ईयर 6 मंथ्स पे कॉन्फ्रेंस जरूर उड़ीसा में होना चाहिए. तो क्रेडाई एंड मेजर की डिसीजन होल्डर्स ऑफ इंडियन उड़ीसा रियल एस्टेट, जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट, रेरा, म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट, all garbage and water, electricity, all these departments work together, तब जाके एक प्रोजेक्ट अप्रूव होता है, राइट? एंड दे राइट नाउ दे ऑल वर्क इन आइसोलेटेड तरीके से. उनके सिस्टम्स आर नॉट इंटीग्रेटेड बैक एंड से. तभी हमें हर डिपार्टमेंट एक जाके करना पड़ता है, सबको सेम डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है. सेम डॉक्यूमेंट 5 अलग गवर्नमेंट को सबमिट कर रहा. इसको ऐसे भी देखो ना. तो राइट नाउ अगर हम ये बेसिक कॉन्फ्रेंस भी कर लेंगे, अगर कि क्रेडा एंड ऑल दीज अदर बॉडीज साथ में, गवर्नमेंट बॉडीज साथ में करेंगे, लॉट ऑफ इश्यूज तो ऐसे ही रिजॉल्व हो जाएंगे विदाउट पॉलिसी चेंज, सिर्फ कोऑर्डिनेशन से. या एंड इवन फॉर क्रेडाई मैं आपको बोलूँगा दैट उड़ीसा क्रेडाई अभी सिर्फ नाम का ही है. अभी क्रेडाई का एक्चुअल यूसेज अभी बहुत डेवलपर्स जानते नहीं कैसे करते हैं. इवन तो मैं खुद क्रेडाई में ज़्यादा घुसा नहीं हूँ यहाँ के, बिकॉज इट इज़ मोर, क्रेडाई इज मोर पॉलिटिक्स देन एक्चुअल वर्क राइट नाउ. A lot of people will be angry when I say this, but I am saying the truth. It is more politics than real work right now. It is more about social status than actual ground level work. But CREDAI का real usage is actually when developers work together. बहुत छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, जो हम यूपी में करते हैं, बाकी जगह करते हैं. मुझे लिफ्ट ऑर्डर करनी है, मैं 20 लिफ्ट मंगाता हूँ एक सोसाइटी में. मैं मेनली 1-2 ब्रांड होते हैं लिफ्ट के, जहाँ से मेजर इंडियन डेवलपर्स खरीदते हैं. अगर इंडियन क्रेडाई के साइड डेवलपर्स बोले कि हम मिलके अपने सोसाइटी एक ऑर्डर देंगे लिफ्ट वाले को, या एक ऑर्डर देंगे, तो स्टील तो सबको खरीदना है, स्टील मिलके एक ऑर्डर देंगे, तो द रेट दैट वी विल गेट विल बी सो मच बेटर देन एन इंडिविजुअल ऑर्डर मैं किसी को दूंगा मैन्युफैक्चरर को. अगर हम पूल करके अपना ऑर्डर करेंगे, एग्जाम्पल अगर मैं इंडिविजुअली 200 टन ऑर्डर कर रहा हूँ स्टील का, और हम 5-6 डेवलपर मिलके वी कैन ऑर्डर 1500 टन, तो जो मुझे रेट 1500 टन में मिलेगा दैट विल बी वे लेस, तो मुझे 200 टन में रेट मिल रहा है. तो अभी ये सोचते ही नहीं यहाँ पे किस तरीके से कोई. एंड you see, if you can save your money like this, you don't, and still give a good product to your customer. तो प्रोडक्ट में कॉस्ट कटिंग करने की जरूरत नहीं है अगर आप ये सब इनोवेशन इस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाते हो. तो यहाँ पे लोग अभी लैक करते हैं इस तरीके से. बट आई होप ये पॉडकास्ट देखने के बाद किसी को आइडिया आएगा करने का, क्रेडाई वुमेनशिप का कुछ आइडिया आएगा. नहीं श्योर, ये अगर होगा तो जो कस्टमर्स हैं उनको भी बेनिफिट्स रहेगा, डेवलपर्स को भी बेनिफिट्स रहेगा, सबके लिए बेनिफिशियल होगा. मगर थोड़ा कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम है यहाँ. कोऑर्डिनेशन चाहिए, कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं यहाँ पे, कॉमन गोल नहीं है, लॉन्ग टर्म विजन नहीं रखते, वही शॉर्ट टर्म अचीवमेंट एंड सोशल स्टेटस ऑफ पोजिशन होल्डिंग, कि मैं ये पोजीशन पे हूँ तो मैं मतलब आई सक्सेसफुल. ऐसा थोड़ी होता है. एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम नहीं बना रहे. या इकोसिस्टम है बट सस्टेनेबल नहीं, सिर्फ नाम का इकोसिस्टम.